pursuit of dreams, we set our course. With passion driving, we stay that course. Each step we take, each challenge we met, crafts the path our lives begin. Through highs and lows, we forge ahead with courage strong and doubts all shed. For in each task and every try, our future's shaped beneath the sky. Our future is shaped beneath the sky. Good morning to one and all present here. I would like to extend a warm welcome to our renowned faculties from Engineers Course Point. I would like to welcome Coordinator and Business Development Manager, Mr. Baldev Singh. Further, I would like to welcome Mr. Gurpratap Singh. And I would like to extend a warm welcome to our motivational speaker, Mr. Gurvinder Singh, who is going to talk about career guidance in India and abroad. Basically, he is going to focus on GATE and IELTS preparation. As you all know that you are almost about to finish your graduations or post-graduations, so you need to look forward towards the career opportunities or career options that you all have further. So I would really request you all to listen to this session carefully and do question them to ask your queries so that it is beneficial for you all to shape your future. So I would like to extend a warm welcome to our motivational speaker for today, Mr. Gurvinder Singh. A huge round of applause. So, good morning everyone. I'm audible to all of you? Audible to everyone? Yes. Loud and clear in the end? Okay, great, thank you. So first of all, I would like to thank the college management that who has given us this opportunity to discuss on a very important topic, which is going to be your, as you all of you are from the final year. Everyone understand English or Hindi? Hindi understand everyone? Yes, is there anyone who cannot understand Hindi? Yes, sir. Who cannot understand Hindi? Everyone is comfortable, na? Okay, right. So I'm here to talk on a very important topic that is about your career, right? So आप लोगों ने वर्ड तो बहुत ज़्यादा सुना होगा कि करियर कुछ वर्ड होता है, करियर होता है, जॉब होती है. Majority of the students are here, I think, from the engineering background, and BCA students are also there. BCA है? How many are from the BCA background? Okay, great. And how many from the engineering background? And rest are BBA? BCom students are here. Okay. So आज का जो मेरा डिस्कशन है, देखिए जैसे सर ने बोला कि इट इज गोइंग, मैम ने बोला कि इट इज गोइंग टू बी मोर लेस ओरिएंटेड टुवर्ड्स द गेट एग्जामिनेशन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब एंड हायर स्टडीज इंडिया एंड अब्रॉड, राइट. आप लोगों में से आई थिंक काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पंजाब से बिलोंग करते हैं. सो पंजाब में बहुत ज़्यादा अभी मैं तो बोलूँगा कि अगर हम 1-2 साल पीछे जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड था फॉरेन जाने का, अब्रॉड जाने का, स्पेशली कैनेडा एंड ऑल. लेकिन द प्रोसीजर वाज रॉन्ग, राइट. गलत तरीका था जाने का और उसके आपको रिपोर्टेशंस आप देख भी रहे हैं आजकल की गए गलत तरीके से. गलत तरीका नॉट इन द सेंस कि आप लोग जाने का तरीका गलत है, लेकिन जिस वे से आप लोग जा रहे हैं, जो प्रोसीजर आप लोग फॉलो कर रहे हैं, एजेंट्स एंड देन गोइंग फॉर द PR एंड एवरीथिंग, दैट इज रॉन्ग प्रोसीजर बाय स्पेंडिंग सो मच मनी. वो प्रोसीजर नहीं है, दैट इज नॉट द वे टू गो अब्रॉड. हमें अब्रॉड पैसा खर्च करने के लिए नहीं जाना है, वी हैव टू अर्न मनी फ्रॉम देयर. That is the procedure. So I'm going to talk on that also because वो एक बहुत important topic होता है, especially पंजाब के अंदर अगर हम abroad studies की बात करें, right? So लेकिन definitely yes कि जो मेरा procedure आज रहेगा आप लोगों को बताने का, चाहे वो मैं job से related बात करूं या मैं abroad या study से related बात करें higher studies में, that is going to be from the hard work only. एंड हार्ड वर्क हैविंग नो रिप्लेसमेंट, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. मेहनत ही एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू तुम अच्छी चीज ले सकते हो और उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है. देयर इज नॉट एनी ऑल्टरनेट टू द हार्ड वर्क, राइट. मेहनत करने के लिए यार आप लोगों को कभी घबराना नहीं है लाइफ के अंदर. मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आप अच्छी चीज चाहते हो और अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो, अपनी लाइफ को और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, राइट. नाउ आई एम स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, लाइक ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम द फाइनल ईयर. अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास अभी जैसे आप लोग पास आउट हो जाएंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती क्या क्या है, बट अपॉर्चुनिटीज यू हैव. अगर मैं इसको कैटेगराइज करें तो 3 टाइप्स में हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज दैट यू कैन गो फॉर द जॉब ऑप्शन.
after you do your BCom, your BBA, BCA or BTech, you can directly go for the job, right or no? Yes. Second, what options you have? Higher studies, you can go for the higher studies. So many options are there. After BCom, you can go for the MCom, BBA, MBA, you can go for that. After you do the BTech, you can go for the master's program in MTech or MS, you can go for that. And so many other options are also there. Third option is you can either go for your business or your entrepreneurship, right? You can go for that. Now, अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे डिगिन करें कि अगर मैं बात करूं कि जॉब के लिए, तो हमारे पास किसकी टाइप की जॉब का ऑप्शन होता है आफ्टर यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन? क्या क्या टाइप ऑफ जॉब होती है आपके पास? फर्स्ट टाइप, यू कैन गो फॉर द प्राइवेट जॉब. प्राइवेट जॉब का ऑप्शन होता है कि नहीं होता आप लोगों के पास? यस और नो? सेकंड टाइप क्या होती है आपके पास? गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोग जा सकते हैं. थर्ड, व्हाट इज द थर्ड वन? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द जॉब ओनली. प्राइवेट, गवर्नमेंट, विच इज द थर्ड ऑप्शन? हाँ, टेल मी. एनजीओज? नहीं, ये इसका नहीं है, ये कैटेगरी उसका, उसी इन दोनों में से किसी में आ जाएगा, प्राइवेट में आ जाएगा. प्राइवेट, गवर्नमेंट. तीसरा कैटेगरी जिसको मिस कर रहे हैं हम लोग, दैट इज द पब्लिक सेक्टर जॉब्स. पब्लिक सेक्टर जॉब्स मे भी आप लोगों में से काफियों ने ये पहली बार सुना होगा कि सर पब्लिक सेक्टर क्या चीज है. वी विल डिस्कस ऑन दैट ऑल्सो. तो जॉब्स की कैटेगरीज क्या क्या आती हैं आप लोगों के पास? यू हैव द प्राइवेट जॉब ऑप्शन, you have the government job option and you have the public sector option. We will discuss in depth on all these points. Now if we talk about the higher studies के लिए हम बात करें, although you are doing your bachelor's, so you can go for the master's program after this. Yes or no? Yes sir. और अगर मैं particularly अगर मैं इंजीनियरिंग डोमेन की बात करूं तो हायर स्टडीज में बीटेक के बाद क्या क्या ऑप्शंस आती हैं आप लोगों के पास? यू हैव द एमटेक ऑप्शन. और कोई ऑप्शन होती है हायर स्टडीज का आफ्टर यू द बीटेक? Higher studies, MTech. If you talk about only the technical domain as of now, that is the other category, that is the management domain. That yes, that also option is there. Yes, you can go for the MTech program, you can go for the management program, MBA program. Otherwise, you have the also option of the MS, Master in Sciences. जैसे MTech होती है, ऐसे MS होती है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. Then you have also very good option, that is the direct PhD program after you complete your graduation. आप लोग अगर एक बार ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, बीटेक कंप्लीट करते हैं, अबाउट द बीबीए, बीसीए, आई विल डिस्कस अबाउट योर ऑप्शंस आल्सो. तो बीटेक के बाद यू कैन आल्सो गो फॉर द डायरेक्ट पीएचडी ऑप्शन. इसके बारे में आप लोगों को आइडिया नहीं है बिल्कुल भी, ये मैं थोड़ा सा सोच के चल रहा हूँ कि आपको नहीं आइडिया. ऑल्दो कि डायरेक्ट पीएचडी इंडिया के अंदर अराउंड 2013-14 के आसपास स्टार्ट हो गया था. नाउअडेज यू कैन गो फॉर द डायरेक्ट पीएचडी अब्रॉड ऑल्सो, राइट? तो वो सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. नाउ अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस के बारे में, तो वो एक थर्ड कैटेगरी में आ जाता है. अब हम डिस्कस करते हैं एक एक करके कि प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, पब्लिक सेक्टर या हायर स्टडीज में एमटेक, एमएस, डायरेक्ट पीएचडी या एमबीए के लिए. अगर आप लोगों ने एमबीए करनी है, क्या ड्रीम होगा आपका? कहां से करना चाहिए आपको एमबीए? फ्रॉम वेयर यू वांट टू डू योर एमबीए, कहां से कर सकते हो आप? ये कहां करनी चाहिए, क्या सोचोगे आप लोग? ऑब्वियसली यू विल टारगेट द टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया. चलो मिलना ना मिलना एक अलग पार्ट है, बट यू विल टारगेट ना. नो, विच आर द टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया फॉर एमबीए? कौन से हैं? ऑब्वियसली आईएम्स. बोलो यार, बोल क्यों नहीं रहे हो? आईएम्स है. और कोई इंस्टीट्यूट? खुल के बोलो, ऊंची से, लाउडली. आईएम्स आर देयर फॉर द मैनेजमेंट, राइट? अब मेरे को अगर आईएम्स से एमबीए करना है तो क्या करना पड़ेगा? कैट का एग्जाम देना पड़ेगा? यस और नो? तो कैट का एग्जाम देना पड़ेगा. अब अगर मैं बोलूं कि मेरे को अगर गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? अगर मेरे को गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? तो भाई क्या करना पड़ेगा? जाओगे गवर्नमेंट में ऑफिस जाओगे और डॉक्यूमेंट देखो तो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी. क्या करना पड़ेगा? एग्जाम देना पड़ेगा, कंपीट करना पड़ेगा. नाउ सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द हायर स्टडीज ऑल्सो, नाउ हियर द कंडीशन इज कि हम लोग जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं वो बेस्ट ऑप्शंस जिसमें मेहनत है, जिसके लिए आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा. अगर आपको एमबीए के लिए जाना है तो कैट का एग्जाम देना पड़ेगा. अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है तो अगेन आपको कोई ना कोई एग्जाम देना पड़ेगा. अगर आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है, एमकॉम के लिए जाना है, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स के लिए जाना है, आपको एमबीए के लिए जाना है, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स, आपको एमटेक के लिए जाना है, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स, इट मींस कि यू हैव टू राइट सम एग्जाम. यस और नो? यू हैव टू राइट सम एग्जाम मींस यू हैव टू कंपीट. आपको कंपीट करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट ऑल दोज बेस्ट ऑप्शंस. अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है,
और कोई तरीका नहीं है बेस्ट ऑप्शन चूज करने का या बेस्ट ऑप्शन को लेने का. नो डाउट यू कैन डू MBA, योर MCOM, योर दिस MTech फ्रॉम सो मेनी इंस्टीट्यूट्स आर देयर, सो मेनी इंस्टीट्यूट्स आर देयर. लेकिन आपको बेनिफिट तभी मिलेगा अगर आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, तभी आपको उसका बेनिफिट होगा. अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी प्योरली ऑर्नामेंटल डिग्री, सिर्फ एक ऑर्नामेंटल डिग्री हो जाएगा और कुछ नहीं होगा. यार मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज मोबाइल फोन पॉकेट में रख लीजिए प्लीज. मेरे को सुनना ना सुनना उससे कोई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सारा डिस्कशन. नाउ तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ टॉप ऑप्शंस उठाना है ना, आफ्टर यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, आपको अगर टॉप इंस्टीट्यूट ऑप्शंस उठाना है, चाहे हम जॉब की बात करें, गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं मिलनी, मेरे को प्राइवेट जॉब के लिए करना है. गवर्नमेंट जॉब क्यों कोई चाह रहा है? सबसे पहला चीज ये है कि ठीक है अभी एक वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा. वर्क लाइफ बैलेंस मतलब कि मेरे को 5 दिन जॉब कर रहे हैं, 6 दिन जॉब करना है, 8 घंटे का जॉब करना है, तो वो मेरे को मिलता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर. दूसरा रीजन स्टूडेंट का जॉब सिक्योरिटी दिमाग में आता है कि गवर्नमेंट जॉब मेरे को इसलिए ज्वाइन करनी है कि मेरे को जॉब सिक्योरिटी है. मेरे को आज तक एक भी स्टूडेंट इस चीज का आंसर नहीं कर पाया है कि भाई किस चीज से सिक्योरिटी तुम लोग चाहते हो, किस चीज से सिक्योरिटी चाहते हो, कोई तुम्हें क्यों निकालेगा. नाउ थिंक अबाउट द रीजन कि ये दिमाग में आता है. अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि भाई कोई कौन गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत सारे हैंड रेज होंगे, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पूछूं क्यों गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना चाहते हो, द वेरी फर्स्ट आंसर कम्स इज द सर जॉब सिक्योरिटी. आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट. और ये दिमाग में कहां से आ रही है बात, किस चीज से सिक्योरिटी तुम लोग चाहते हो? आई डोंट फाइंड एनी रीजन फॉर दैट फ्रॉम एनी ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द टॉप इंस्टीट्यूट एवरीवेयर. मैं हर जगह जाके ये पूछ रहा हूं कि किस चीज से सिक्योरिटी. अगर आप लोगों में से कोई इस चीज का आंसर करना चाहता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब सर इस रीजन, इस चीज से सिक्योरिटी हमारा पर्पस है, ये रीजन है सर, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर, टू लिसन टू दैट आंसर, राइट. उसके बाद अब नटशेल में अगर मैं इसको कंक्लूड करूं कि अगर मेरे को कोई भी अच्छी ऑप्शन चाहिए, चाहे वो प्राइवेट में हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, पब्लिक सेक्टर के बारे में भी डिस्कस करते हैं क्या चीज है, या मेरे को हायर स्टडीज के लिए जाना है, मेरे को MTech के लिए जाना है, या मेरे को MBA के लिए जाना है, या मेरे को MCOM के लिए जाना है. अगर आई एम टारगेटिंग द टॉप इंस्टीट्यूट जहां से आपको करियर मिलेगा, देन आई हैव टू कंपीट, देन आई हैव टू कंपीट. इट्स वेरी सिंपल. क्योंकि अच्छी चीज, कोई भी अच्छी चीज आसानी से नहीं मिलेगी लाइफ में. ये चीज दिमाग में रखना कि कोई भी अच्छी चीज लाइफ में आसानी से नहीं मिलेगी. और दूसरी चीज ये है कि अगर आप मेहनत करना चाहते हो और मेहनत करने का है आपको, देन यू कैन इजीली गेट दैट थिंग. आप लोग बहुत आसानी से वो चीज ले सकते हो. हमें वो दिखता है कि यार ये चीज बहुत डिफिकल्ट है, या ये एग्जाम के लिए तो मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. नाउ थिंक अबाउट कि जब आपको वो चीज मिल जाएगी उसके बाद का आपका लाइफ कैसा होगा. तो थिंक अबाउट दैट. आप लोग उससे पहले सोच रहे हो कि मेरे को अगर बैंक में जॉब करना है, या मेरे को अगर IIM जाना है, या मेरे को अगर IIT जाना है MTech प्रोग्राम के लिए, या मेरे को पब्लिक सेक्टर में जॉब चाहिए, उसके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. दैट इज ट्रू, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है. नाउ थिंक अबाउट कि जिस चीज के लिए आप ड्रीम कर रहे हो, जिसके लिए आप सोच रहे हो कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जिस दिन वो चीज मिल जाएगी, नाउ थिंक अबाउट उसके बाद आपका करियर कैसा होगा, उसके बाद आपकी लाइफ कैसी होगी. नाउ उस फेज को सोच के अपनी मेहनत करना स्टार्ट कर दो. उस फेज को सोच के मेहनत करना स्टार्ट कर दो कि जिस दिन मैं MBA के लिए IIM पहुंच गया, या जिस दिन मैं MTech के लिए IIT पहुंच गया, मेरी जिंदगी बन गई. या जिस दिन मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गया, जिस दिन मैं पब्लिक सेक्टर में एंटर कर गया, उसके बाद मेरी लाइफ पूरी सेटल्ड है. उस फेज को सोच के मेहनत करना स्टार्ट कर दो आज से ही. अब प्रॉब्लम कहां पे आती है कि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स की जो मेहनत करना चाहते हैं और मेहनत करते भी हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता है. उनको रास्ता नहीं मिलता है कि भाई सर मैं आई एम रेडी टू डू द हार्ड वर्क, लेकिन मेरे को रास्ता बताओ सर, कैसे मिलेगा सक्सेस. मेरे को सक्सेसफुल होना है लाइफ में, मेरे को बहुत बड़ा आदमी बनना है, मेरे को अपना नाम कमाना है, मेरे को सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मेरे को कुछ डिफरेंस क्रिएट करना है सोसाइटी के लिए, विच यू कैन डू एंड ऑल ऑफ यू कैन डू. क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री, और यहाँ पे अभी बहुत चीजें ऐसी हैं, क्योंकि ये अभी डेवलपिंग स्टेज में है. डेवलपिंग, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, डेवलप नहीं हो गया. डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्री में कहाँ क्या डिफरेंस होता है, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, यू आर मैच्योर्ड इनफ कि डेवलप्ड कंट्री कौन सी होती है, क्या उसमें फैसिलिटीज होती हैं, या हम किसी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री कब बोलते हैं. आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड द थिंग्स. नाउ स्पेशली फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हु आर हियर, ये जितना भी मैंने आपको करियर ऑप्शंस बताया, ये जितना भी मैंने आपको ये करियर ऑप्शंस बताया, मैंने बोला इसके लिए कोई एग्जाम देना पड़ेगा. नाउ आई एम सेइंग
कि जितना भी सारी की सारी ऑप्शंस अगर आपको ओपन करनी है, उसके लिए जो आपको एक ही सिंगल एग्जाम देना पड़ेगा, एक ही सिंगल एग्जाम देना पड़ेगा। आपको प्राइवेट में जाना है, आपको गवर्नमेंट में जाना है, आपको पब्लिक सेक्टर में जाना है, आपको मास्टर्स एमटेक के लिए जाना है, आपको एमबीए के लिए जाना है, आपको अपने बिजनेस के लिए जाना है, देयर इज ओनली सिंगल एग्जाम एंड दैट एग्जाम इज नोन एज द गेट एग्जामिनेशन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस गेट एग्जामिनेशन कि एक एग्जाम देने से आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जा रही है, मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो रही है। Now this exam is not only restricted for the engineering domain. Now non-engineering sciences students can write this exam. Humanities people can write this exam. Who are doing their MA in English, MA in Hindi, they can write this exam. और उसके बाद बहुत ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल है। So many options are there. So many options are there. Right? ऑप्शंस क्या क्या है मैंने आपको बता दिया कि एक एग्जाम दो और सारी करियर ऑप्शंस आप लोगों के पास जो है वो ओपन हो जाएगा। हिल जाता है Okay, so our topic is to discuss about all the career options through job and higher studies, right? After you do your bachelor's. Now, what is GATE examination? थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि GATE एग्जाम है क्या चीज़ है, इसका हिस्ट्री जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। See, GATE इस एग्जाम को बता सकते कब स्टार्ट हुआ था? When this GATE exam started? कितने लोग हैं ईमानदारी से बताना GATE एग्जाम के बारे में आज सुने, स्पेशली द इंजीनियरिंग पीपल। Great. So, GATE exam it started in 1983. 1983 में स्टार्ट हुआ था and this exam started to promote the higher studies in the country. Now, इस ये जो मैं अभी चीज बता रहा हूँ, it is not only restricted for the engineering. Everyone just listen this. This GATE exam actually started in 1983 to promote the higher studies in the country. आप लोगों में से कितनों ने अभी जो जट एंड जूलियट 3 मूवी आई है देखी है? किन्होंने देखी है? करो यार हैंड रेस, कोई उसमें कोई वो नहीं है, देखी है ना? वेरी गुड। अच्छा मेरे को बताओ कितने लोगों ने रॉकेट बॉयज सीरीज देखी है? रॉकेट बॉयज देखी किसी ने? हाँ, ये डिफरेंस है, बस यही डिफरेंस है। सभी जाके देखना रॉकेट बॉयज सीरीज, आपको पता लगेगा कि कंट्री किस फेजेस से निकला है। नाउ द चैलेंज वाज, पार्टीशन हुआ 1947 में, इंडिया की बहुत बड़ी कंट्री थी, जिस पर्पस से ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे वो पर्पस बाद में भी वो उसको कंटिन्यू करना चाहते थे। नाउ अब एक बहुत बड़ा हब है इंडिया आज भी बिजनेस के लिए, फॉर इंटरनेशनल बिजनेसेस, राइट? कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि मैं उसको कोई चीज सिखा दूं और वो वहीं पे बनना स्टार्ट हो जाए। मैं बेचना चाहता हूं, बिजनेस करना चाहता हूं। आप भी जो लोग बिजनेस करना चाहते हो, आप भी कभी नहीं चाहेंगे कि जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं और जिसको मैं सेल कर रहा हूं वो खुद अपना वो प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दे। ये कुछ करना चाहेगा? कोई नहीं करना चाहेगा। यही चीज इंटरनेशनली चैलेंजेस आए वहां पे कि इंडिया की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो डिमांड्स है क्वालिटी लाइफ को लेके, बेसिक नीड को लेके, जिसमें रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा नीड था। क्योंकि आज सोच के देखो कि अगर सिचुएशन होता कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो क्या सिचुएशन होती किसी भी कंट्री का। ना इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका वाटर हो गया, क्वालिटी लाइफ, खाना अच्छा हो गया, सड़कें अच्छी हो गई, ये सारी चीजें एक डेवलप्ड कंट्री की बहुत ज्यादा, मतलब आप बोल सकते हैं कि जिसमें ये चीजें बड़ी इजीली मिल रही हैं और क्वालिटी के साथ मिल रही है, तो इट मींस दैट कंट्री इज डेवलप्ड। नाउ द चैलेंज वाज कि पार्टीशन के बाद बिजनेसेस हो रहे थे, चीजें अदर कंट्रीज हमें बेच रही थी। बेचने से क्या होगा कि जब आप कोई चीज जितना ज्यादा खरीदोगे उतना आपका ग्रोथ कम होगा। इट्स वेरी सिंपल। आप लोगों ने जीडीपी वर्ड सुना है? जीडीपी होती है किसी कंट्री का, जीडीपी का डायरेक्ट रिलेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ होता है कि जितना आप सेल करोगे उतना आप अर्न करोगे, जितना आप
परचेज करोगे उतना आप डाउन में चले जाएंगे. सो जीडीपी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. नाउ किसी भी कंट्री की ग्रोथ में जीडीपी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जितना आप अर्न करोगे उतना आप इन्वेस्ट कर पाओगे, उतना आप स्पेंड कर पाओगे इन 4-5 बेसिक नीड्स के लिए, राइट. नाउ आफ्टर द पार्टीशन चैलेंजेस वाज कि कोई आपको सप्लाई नहीं करना चाह रहा था, आपको सप्लाई कर रहे थे लेकिन आपको कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को रेडी नहीं था. वो बोल रहे थे हमसे प्लेन्स परचेज कर लो, हमसे कारें परचेज कर लो, लेकिन हम तुम्हें सिखाएंगे नहीं कि कैसे बनती हैं ये. सो देयर द चैलेंज कम्स कि हमें चीजों को यहीं पे डेवलप करना है, हमें चीजों को यहीं पे डेवलप करना है. अब टेक्नोलॉजी इज हैविंग अ मेजर रोल टू डेवलप एनी कंट्री. अब सोच के देखो, डॉक्टर्स, लॉयर्स, क्या ये किसी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं? ओनली टेक्निकल पीपल कैन डू, ओनली टेक्नोक्रेट्स कैन डू, और कोई नहीं कर सकता है. दैट इज द रीजन व्हाई दिस गेट एग्जाम स्टार्टेड, कि हमें यहीं पे चीजों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. हमें अपने थर्मल प्लांट्स, हमें अपने न्यूक्लियर प्लांट्स, हमें अपने हाइड्रो प्लांट्स, हमें अपनी कार्स या जो भी मैन्युफैक्चर करना है, छोटी छोटी चीज भी हमें यहीं पे बनानी है. अगर मेरे को सपोज न्यूक्लियर प्लांट लगाना है किसी कंट्री में, तो उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? न्यूक्लियर के साइंटिस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? फिजिक्स पीपल चाहिए कि नहीं चाहिए? नाउ एट द बैचलर लेवल यू डोंट हैव एनी एक्सपर्टीज एज ऑफ नाउ, यू डोंट हैव एनी एक्सपर्टीज. अब आप मेरे को बता दो किस चीज के एक्सपर्ट है, किस चीज के स्पेशलाइज्ड है, तो बता सकते हैं आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है? एट बैचलर लेवल कुछ भी नहीं. Specialization comes at the master's level. When you do MBA in finance, when you do MBA in marketing, when you do MBA in particular domain, when you do masters in, let us suppose, which branch students are here from engineering, civil, other, computer science or chemical, mechanical. Okay. When you do your masters in, let us suppose, thermal engineering, when you do masters, let us suppose, in sustainable development, when you do masters in cyber security. So once you do the master, then only you are a specialized person, then only you are a specialized person. And that was the need of this country at that time, during the 60s 70s. That was the need, that was the need. रॉकेट वाइज मैंने सीरीज इसलिए बोला है तो आपको पता लगेगा कि क्या चैलेंजेस थे नेशनली और इंटरनेशनली, क्या प्रॉब्लम्स आई थी, वो सीरीज में थोड़ा सा उसका दिखाया गया है. सभी को देखना, उसको सभी देखना कि कैसे ये चीजें ग्रो करी हैं, कैसे आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलना स्टार्ट हुआ है, उसमें थोड़ा सा बताया गया है. राइट नाउ गेट एग्जाम का पर्पस था टू क्रिएट द स्पेशलाइजेशंस, टू क्रिएट द स्पेशलिस्ट पर्संस, सो दैट अगर एक पर्सन स्पेशलाइज्ड होता है किसी डोमेन में, देन दैट पर्सन कैन वर्क ऑन पर्टिकुलर थिंग, और वो चीजें क्रिएट हो सकती हैं. न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा लो, थर्मल प्लांट्स लगा लो, ये जो भी चीजें, गाड़ियां लगा लो, एक सुई तक लगा लो, कोई भी, थिंक अबाउट एनीथिंग, थिंक अबाउट एनीथिंग. अब एक चीज बहुत ज्यादा फेमस है, कहते हैं कि पाकिस्तान में तो सुई तक नहीं बनती है. ये चीज फेमस है कि एक सुई भी मैन्युफैक्चर नहीं होती है. दैट इज द रीजन में उसकी जीडीपी का हाल देख लो. तो इसका डायरेक्ट रिलेशन उसके साथ है. नाउ टुडे सिचुएशन इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट थी टेक्नोलॉजी की कि पहले हमें अपने लोगों की नीड्स को पूरा करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बेसिकली फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर पीपल, देन वी हैव टू डू द बिजनेस. There are so many organizations, for example ISRO, Indian Space Research Organization, सुने इसके बारे में सभी ने? ISRO सुने? क्या करती है? सैटेलाइट लॉन्च करती है. फॉर एग्जाम्पल लेमन लैंग्वेज में सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ना जाके स्पेस में. क्या वो सिर्फ इंडिया के लिए कर रहे हैं? क्या वो सिर्फ इंडिया के लिए कर रहे हैं? या यूएसए तक अपने सैटेलाइट्स इंडिया से, इसरो से लॉन्च करवा रहे हैं? तो आपको लगता है इससे बिजनेसेस आ रही हैं, पैसा आ रहा है? हाँ या ना? ये चीज है. नाउ फॉर एग्जाम्पल मेरे को नहीं पता आप कितने का अवेयर हो इस चीज से, आज से 3-4 साल पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा वेटिंग पीरियड हो गया था. बहुत ज्यादा वेटिंग हो गई थी गाड़ियों की, 2 व्हीलर की, 4 व्हीलर की, और उसके पीछे जो रीजन निकल के आया था, दैट वाज द शॉर्टेज ऑफ द चिप. ये न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा आया था कि दैट वाज द शॉर्टेज ऑफ द चिप. चिप क्या चीज है? आपका माइक्रो प्रोसेसर, जो आप लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल पीपल, या आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर भी एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, दैट इज अ चिप. नाउ अब मेरे को बताओ कि एक 2 व्हीलर के अंदर भी एक आ गया क्या माइक्रो प्रोसेसर? उसमें भी लगा हुआ है ना. आपके आजकल जो नए मोटरसाइकिल आ रहे हैं, जो गाड़ी आ रही है, हर किसी में माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है. सो दैट वाज द प्रॉब्लम. अब इंडिया ने उसको एक चैलेंज लिया कि वी विल बी द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द चिप, कि हम पूरी दुनिया को सप्लाई करेंगे.
और बिजनेस करेंगे और पैसा कमाएंगे। ये चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जीडीपी कैसे बढ़ेगा, और इसमें हर किसी का कंट्रीब्यूशन है, हर कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है। जैसे मैंने इसरो का एग्जांपल लिया, ऐसे ही हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या बनाती है, सुना किसी ने HAL के बारे में? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड क्या बनाती है? ये आपके प्लेन्स, मिसाइल्स ये बनाते हैं। ये DRDO बनाती थी पहले, ये अपना हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स वगैरह DRDO बना रहा था, लेकिन कोई आउटपुट नहीं आया। Then they shifted to HAL, Hindustan Aeronautical Limited. Now they have started exporting planes, helicopters to the other countries. That is the situation. See, being an Indian, हमें अपनी सिस्टम के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पे हम लोग लैग करते हैं। क्योंकि जब तक हमें अपने सिस्टम के बारे में पता ही नहीं होगा यार, हम लोग कैसे कोई एफर्ट कर पाएंगे। तो इसलिए हमें अपने सिस्टम के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दैट वाज द नीड ऑफ द आवर, गेट एग्जामिनेशन। अब आप बोलोगे सर गेट एग्जाम 83 में स्टार्ट हुआ, क्या उससे पहले मास्टर्स नहीं करते थे बच्चे? करते थे, बिल्कुल करते थे, बट दे वांट द कैपेबल पीपल एंड दे वांट द person who are genuinely want to go for the higher studies and want to do something for the society. आप लोगों ने सुना होगा कि मास्टर्स होती है, PhD होती है, तो इसमें कुछ आपको रिसर्च वर्क करना होता है। सुना नहीं ये टर्म आपने कि कुछ रिसर्च करनी होती है? सुनिए कि नहीं ये चीज? तो रिसर्च क्या चीज होती है? रिसर्च कुछ नहीं है, रिसर्च इज कि सोसाइटी की एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना। भाई चिप मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये किसी भी एक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी एक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम हो सकती है। उसका प्लांट लेआउट देखेगा कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ये थ्योरेटिकल है सारा का सारा, इसमें कुछ प्रैक्टिकल नहीं है रिसर्च, इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है रिसर्च। आ रही है चीजें समझ में? नहीं आ रही है, ऊपर से तो नहीं निकल रही है। आई एम ट्राइंग टू, मतलब जितना इजीएस्ट वे में बताया जा सके। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही चीजें? तो इस तरीके से सिस्टम चलते हैं। वी नीड द कैपेबल पर्सन, वी नीड द स्पेशलाइज्ड पर्सन। That is the reason why 83 में this GATE exam started, and GATE is a standard exam. GATE एक standard exam है स्पेशली इंजीनियर्स के लिए, कि जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। क्या बेनिफिट दे रहा है वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया सारा, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, राइट? बात आ गई समझ में? सो दिस इज GATE एग्जामिनेशन। अब GATE एग्जाम होता क्या है? बहुत देखो, GATE एग्जाम जिन्होंने भी सुने हैं, तो जब मैंने गेट वर्ड सुना होगा या मैम ने या सर ने जब गेट वर्ड बोला होगा ना, सबसे पहला थॉट पता क्या आता है? गेट एग्जाम का नाम सुन के हमसे नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट है, हमसे नहीं होगा और बहुत डिफिकल्ट है, ये पहला थॉट आता है दिमाग में। देखो गेट एग्जाम क्या है, ये बहुत इजी एग्जाम है, उनके लिए एग्जाम बहुत ज्यादा इजी है जो चीजों को समझ के करते हैं। ये कंसेप्चुअल एग्जाम है, कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम है, ये थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं है, ये क्रैम करने वाला एग्जाम नहीं है, ये याद करने से नहीं निकलेगा एग्जाम, ये समझ के निकलेगा एग्जाम। कि अगर आपको चीजों को समझ के पढ़ते हैं, अगर आप अगर अपने इंजीनियरिंग से सब्जेक्ट जो भी अपनी ब्रांच में पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको समझ के पढ़ोगे, देन दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी वेरी इजी एग्जामिनेशन, वेरी इजी एग्जाम। एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है? यू विल गेट 65 क्वेश्चंस, 65 क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं, 100 मार्क्स का ये एग्जाम होता है और ये 3 घंटे का एग्जाम होता है। 65 questions, 100 marks and 3 hour exam is there, and out of this 100 marks 70 questions are for ये technical section। टेक्निकल सेक्शन भी जो आप लोग अपने इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस पढ़ता है, एल्गोरिदम, TOC, सी डाटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कोआ, ये आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। सिविल इंजीनियर पढ़ता है, आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, सर्वेइंग, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, एनवायरमेंट, आपका जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं वही इसका सिलेबस है और कुछ नहीं है इसके बियॉन्ड। मैकेनिकल में थर्मल एप्लीकेशंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, यही सब्जेक्ट है सारे जो आप लोग इसमें आते हैं, एंड दैट कंट्रीब्यूट द 70 मार्क्स सॉरी, एंड 50 मार्क्स आर ऑफ द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आप लोगों ने सभी ने पढ़ा है ना, M1 M2 M3 पढ़ा है ना, M1 M2 M3 वही है ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, राइट? एंड 15 मार्क्स आर ऑफ द जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में 3 चीजें आती हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है? इट्स 10th तक का जो आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है, आपने LCM, SCF, प्रॉफिट लॉस ये पढ़ के आए हो, परसेंटेज पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो 10th में, वो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आप लोगों के बैंकिंग एग्जाम में ये बहुत आता है। देन कम्स द रीजनिंग। रीजनिंग क्या होता है? आप लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशंस की प्रॉब्लम्स, सिलोजिज्म वगैरह ये पढ़ के आए हैं 10th तक या नहीं पढ़ के आए हो? नंबर सीरीज वगैरह,
अल्फाबेटिक सीरीज वगैरह, ये पढ़े हैं ना 10th में, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? दैट इज रीजनिंग। और उसके बाद आ गया आपका इंग्लिश। इंग्लिश में आप लोगों ने एंटोनियम, सिनोनियम, फिलिंग द ब्लैंक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, ये भी आप लोगों ने पढ़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 100 मार्क्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप लोगों ने ना पढ़ी हो। तो सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा है, सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा है, राइट। और इसमें 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट वन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होगा। सेकंड वन इज द मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होगा और एक से ज्यादा आंसर ठीक होता है उसके अंदर। एंड लास्ट वन इज द न्यूमेरिकल आंसर टाइप, फिलिंग द ब्लैंक, कि जिसमें आपको वैल्यू पुट करनी है सॉल्व करके, सॉल्यूशन करके। एंड आउट ऑफ दिस 65 क्वेश्चंस, more than 55 questions are numerical. Out of 65 questions, more than 55 questions are numerical in the GATE examination. Next. Next. GATE exam. GATE exam is valid. You can write the GATE examination 3rd year onwards. 3rd year onwards आप लोग गेट का एग्जाम लिख सकते हैं। मतलब आप लोगों के लिए तो चांस गया ये, बट अदरवाइज देर इज नॉट एनी लिमिट टू राइट द दिस अटेम्प्ट लिमिट, देर इज नॉट एनी लिमिट टू द गेट। सेकेंड वन इज 70-30, मैंने आपको बता दिया। देन इफ यू क्वालिफाई गेट, तो आप लोग वो सारी करियर ऑप्शंस के लिए ओपन हो जाते हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई। गेट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, वर्चुअल कैलकुलेटर होता है। गेट का जो एग्जाम है, जो स्कोर कार्ड है, वो 3 साल के लिए वैलिड, सॉरी 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है। देन यू कैन राइट द 2 गेट एग्जामिनेशन, एट ए टाइम आप 2 गेट के एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको पब्लिक सेक्टर जॉब्स में जाना है, गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है, देन यू कैन राइट द गेट एग्जाम। अगर आपको हायर स्टडीज में जाना है, इंडिया अब्रॉड में जाना है, यू कैन राइट द गेट एग्जाम। इफ यू वांट टू बी स्पेशलाइज्ड इन पर्टिकुलर डोमेन, इफ यू वांट टू बी स्पेशलाइज्ड इन पर्टिकुलर डोमेन, अब इसका कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को किस डोमेन में स्पेशलाइजेशन करनी है? आप लोगों ने जब अपनी पूरी इंजीनियरिंग पढ़ी है ना, कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट बन जाता है, जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो आपका कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है, चाहे वो आपका जियोटेक से रिलेटेड है, तो आप उस पर्टिकुलर डोमेन में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। देन यू विल बी कॉल्ड द स्पेशलाइज्ड इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। सो इफ यू वांट टू बी स्पेशलाइज्ड इन पर्टिकुलर डोमेन, देन आल्सो यू हैव टू राइट द गेट एग्जामिनेशन। और उसके बाद जब आप गेट एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका जो ओवरऑल जो नॉलेज है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड एग्जाम है। आज से कुछ साल पहले बात चला था कि गेट एग्जाम को एग्जिट एग्जाम बना देते हैं इंजीनियर्स के लिए, कि अगर किसी का गेट एग्जाम क्वालिफाई होगा उसी को बीटेक का डिग्री मिलेगा। लेकिन ये बीच में अटक गई बात। एमबीबीएस के लिए होता है, ये एग्जिट एग्जाम होता है एमबीबीएस के लिए, कि अगर कोई वो स्टैंडर्ड एग्जाम निकालेगा उसी को एमबीबीएस का डिग्री मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, जब ये बात चलने स्टार्ट हुई, वो इंजीनियरिंग का वैसे डाउनफॉल आ रहा था। अराउंड 2016-17 के बाद इंजीनियरिंग में नंबर जो है बहुत ज्यादा कम होना स्टार्ट हो गया। पर्पस क्या था इसको एग्जिट एग्जाम बनाने का, कि बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए थे उस टाइम पे, बहुत ज्यादा स्टूडेंट पास आउट हो रहा था बीटेक से। तो कुछ स्टैंडर्ड बनाया जाए कि कैसे, मतलब आगे जाके कैसे डिफरेंशिएट होगा कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट, कि यस ये इसका नॉलेज या इसका कैपेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट की। दैट इज द रीजन व्हाई दिस गेट एग्जाम वाज गोइंग टू बी द एग्जिट एग्जाम। लेकिन ये खत्म होगी, बात नहीं हो पाई उसके बाद, क्योंकि उसके बाद इंजीनियरिंग में वैसे ही जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बहुत कम हो गए। और ये हर कॉलेज की सिचुएशन है, नॉट ओनली योर्स, हर कॉलेज की सिचुएशन है, राइट। एंड स्पेशली द कोर ब्रांचेस, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, स्पेशली द कोर ब्रांचेस, इसमें स्ट्रेंथ वैसे बहुत ज्यादा कम हो गई है। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज, लिसन केयरफुली, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल पीपल, आज अगर आपके कॉलेज में मैकेनिकल का लेट अस सपोज 20 स्टूडेंट है एक बैच में, फॉर एग्जांपल, जो कि 7-8 साल पहले अराउंड 70-80 होता था, तो क्या ये सिचुएशन आपके कॉलेज की है? नहीं, ये हर कॉलेज की है। लेट अस सपोज चितकारा में अराउंड 270-280 का इंटेक होता था किसी टाइम पे, अराउंड 2016, 17, 18 तक। आज 30-35 का उसमें एडमिशन हो रहा है। मैं चितकारा की बात कर रहा हूं मैं, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द गुड यूनिवर्सिटीज, या किसी बात करें एक्सेप्ट द गवर्नमेंट कॉलेजेस लाइक आईआईटीज, एनआईटीज, या कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्टिल थोड़ा बचा हुआ है, क्योंकि इजीली मिल जा रही है सीट, बात आ गई समझ में।
लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज कि सर 2015-16 में जो मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटीज होती थी और जो आज अपॉर्चुनिटीज है, आप मेरे को खुद सोच के बताओ वो बढ़ी हुई होगी या कम हुई होगी या सेम रही होंगी? आप खुद सोच के बताओ मेरे को, आप खुद मेरे को सोच के बताओ कि 2016 का अगर आप 2024 के साथ कंपैरिजन करो, लेट अस सपोज मैकेनिकल इंजीनियर, तो क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज या हायर स्टडीज की अपॉर्चुनिटीज कम हुई होंगी या सेम रही होंगी या बढ़ रही होंगी? क्या लगता है आपको? हाँ, बोलो बोलो, हेजिटेट मत करो यार, बोल दो, नीचे से ऐसे चुप के बोल दो कि आवाज आ जाए। पॉपुलेशन बढ़ रही है, बढ़ रही है ना, तो डिमांड भी बढ़ रही होगी। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? आप चाहते नहीं हो कि सड़कें बहुत अच्छी बने? चाहते हो बिजली 24 घंटे आए, पानी मेरे को पीने में साफ मिले, खाना मेरे को अच्छा मिले? चाहते हो ना? मींस वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट फेज जहां पे हम क्वालिटी लाइफ चाह रहे हैं, और इस चीज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के प्रेशर। और ये जो रिक्वायरमेंट की जो मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं, ये इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में, वो ड्रास्टिकली लो हो गया है। मैं आपको पूरा चार्ट दिखाऊंगा, उसका पूरा टेबल दिखाऊंगा, वो ड्रास्टिकली लो हो गया है। तो आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली दीज कोर ब्रांचेस पीपल, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, जितनी 2016-17 में मेहनत कर रहा था, उसका 30-40% भी अगर आज मेहनत आप कर लेते हो, यू विल बी एट द बेस्ट पोजीशन। और ये मेरे पिछले 15 साल के करियर में मैंने इंजीनियरिंग के बेस पे इतना आसान करियर बनाना मैंने नहीं देखा, कि इतना आसान इंजीनियरिंग के अंदर करियर बनाना हो जाए, मैंने नहीं देखा पिछले 15 साल के अंदर। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप मेहनत करते हो देन यू विल गेट दैट, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज कोई और ले जाएगा अपॉर्चुनिटी। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट, जेट एग्जाम देने के बेनिफिट्स देखिए। सबसे पहली चीज तो तुम्हें मैंने क्रेडिबिलिटी बताया। क्रेडिबिलिटी क्या होती है कि अगर किसी का 2 स्टूडेंट है, ध्यान से सुनना इस सिचुएशन को, 2 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट का 8 CGPA, एक का 6 CGPA, तो क्या ये इस CGPA के बेस पे यू कैन से कि जो 6 CGPA वाला है उसकी कैपेबिलिटी कम है? करता है डिसाइड फैक्टर? क्या ये डिसाइडिंग फैक्टर है? नहीं। लेकिन ये एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन है कि अगर तुम गेट में लेके आ रहे हो 35 मार्क्स, 40 मार्क्स, 45 मार्क्स, 60 मार्क्स, तो इससे क्रेडिबिलिटी बनती है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एग्जाम है। सेकेंड, लाइफ लॉन्ग बेनिफिट। ये ऐसा एग्जाम है जिसको आप पूरी लाइफ यू कैन राइट ऑन योर रिज्यूमे कि आई वाज गेट क्वालिफाइड इन 2025, इन 2026 आई वाज क्वालिफाइड इन दैट ईयर। चाहे आप अगले 15-20 साल जब तक आपका करियर है उस हिसाब से लिख सकते हैं आप अपने रिज्यूमे पे, क्योंकि इसका एक वैल्यू है, क्रेडिबिलिटी है इसकी। दैट इज द थिंग आई एम टेलिंग यू। और गेट क्वालिफाई करना मीन्स तुम्हें इंजीनियरिंग की समझ है, यू हैव द नॉलेज, तुम्हें उसकी समझ है, क्योंकि जो कॉलेज की रिक्वायरमेंट है दैट इज समथिंग डिफरेंट। यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, कंपटीशन की रिक्वायरमेंट इज समथिंग डिफरेंट। आगे ये बात समझ नहीं आ रही है? राइट। नेक्स्ट इज द इंटरव्यू। 2 लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एक दोनों का 8 CGPA या दोनों का एक का 8, एक का 6 CGPA, 6 CGPA विद गेट क्वालिफाई उसने लिखा हुआ अपने रिज्यूमे पे। आपको नहीं लगता उसका बेनिफिट मिलेगा? उसको 101% मिलेगा इंटरव्यू के अंदर, 101% तुम्हें उसका बेनिफिट मिलेगा। दैट इज द थिंग आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। उसके बाद लास्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन अदर एग्जाम्स। मान लो गेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, पूरा साल मेहनत की, क्वालिफाई नहीं हुआ, तो क्या ये ओनली एग्जाम है जिसके थ्रू करियर तुम बना सकते हो? नहीं, इसके अलावा और बहुत एग्जाम होते हैं एक साल के अंदर। रफली मोर देन 30 एग्जाम यू कैन राइट इन अ सिंगल ईयर। मैं सिर्फ इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं अभी। यू कैन राइट मोर देन 30 एग्जाम इन अ सिंगल ईयर। वो मैं बताऊंगा कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं वो। तो करियर बनाना बच्चे आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ईजी हो गया है इंजीनियरिंग डोमेन के लिए। राइट। नेक्स्ट, चलो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द जॉब्स। तो प्राइवेट में इसका कैसे बेनिफिट मिलेगा? प्राइवेट जॉब में दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द इंटरव्यू। इफ यू आर गेट क्वालिफाइड, you are going to get the benefit of that. You are going to get the edge other than the other person. Right? Now, 3 types of categories we have defined in the job.
प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, पब्लिक सेक्टर जॉब। ना प्राइवेट मैंने कवर किया, नाउ कम टू द गवर्नमेंट जॉब। तो गेट के थ्रू कौन सा गवर्नमेंट जॉब लगता है? पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ये 4 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर का जो जॉब है वो गेट के थ्रू होता है डायरेक्ट। पंजाब में पीएसपीसीएल, हरियाणा में हरियाणा यूटिलिटी बोर्ड, ऐसी ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, इसमें जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो जॉब है दैट इज डायरेक्टली थ्रू द गेट एग्जामिनेशन। बात आ गई सर में? सो दिस इज अ गवर्नमेंट जॉब यू कैन गेट थ्रू द गेट एग्जाम। नाउ कम टू द पब्लिक सेक्टर जॉब। अब पहले मैं आपको डिफरेंस बताता हूं गवर्नमेंट जॉब और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। देखो, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट दिस गवर्नमेंट जॉब इज अ स्टेट गवर्नमेंट जॉब लाइक पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, सिमिलरली द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? तो स्टेट गवर्नमेंट में भी जॉब्स होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जॉब्स होती हैं जो 100% प्योरली गवर्नमेंट है। तो पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर आर नॉट प्योरली 100% गवर्नमेंट। इसमें 51 ये शेयरिंग पे होता है, इसमें 51% जो शेयर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और रिमेनिंग शेयर दैट कुड बी ऑफ एनी स्टेट, किसी प्राइवेट का, तो ऐसे मिलके होता है ये। जैसे फॉर एग्जांपल डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, डीएमआरसी, इसमें जो कंट्रीब्यूशन है 51% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 49% आपका दिल्ली गवर्नमेंट का। अब आप लोगों ने पीछे सुना होगा कि ये बहुत ज्यादा सुना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी बीजेपी गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर सेल कर रही है, बेच रही है, कंपनीज बेच रही है। सुना था आप लोगों ने पीछे से? आया था न्यूज के अंदर ये। तो इट मींस कि वो अपना शेयर बेच रहे थे और उन्होंने बेचा है, बीपीसीएल में बेच दिया है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो बेच दिया उन्होंने अपना शेयर, राइट? तो ये चीज होती है कि इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, शेयरिंग होती है। सो दैट इज अ पब्लिक सेक्टर। नाउ अगर आप बोलोगे सैलरीज में डिफरेंस सर, गवर्नमेंट जॉब में अगर एक क्लास 1 ऑफिसर की बात करूं सो सैलरीज अगर एक असिस्टेंट इंजीनियर का जो सैलरी है रफली 65 to 70,000 के आसपास होता है स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूं एक क्लास 1 ऑफिसर का, जो आप एक ग्रेजुएट को मिलता है क्लास 1 ऑफिसर में। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द पब्लिक सेक्टर में जो सैलरीज हैं वो 8 to 10 से स्टार्टिंग से लेके अप टू 15 to 18 लाख तक जाता है। मतलब 8 लाख से लेके 18 लाख तक वेरी कर रहा है। तो इट मींस कि इसमें जो सैलरीज हैं वो गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा है। दैट इज द रीजन वाई कि गेट एग्जाम लिख रहे हैं स्टूडेंट। तो ये पब्लिक सेक्टर एक बहुत बड़ा मतलब मोटिवेशन है स्टूडेंट के लिए गेट एग्जाम को लिखने का। पब्लिक सेक्टर पहले अपना टेस्ट लेते थे और इसमें सारी डोमेन्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप लोग बीकॉम किया है, बीकॉम के बाद एमकॉम करोगे, उसके बाद आप एमबीए करेंगे फाइनेंस में फॉर एग्जांपल, देन ऑल दीज पब्लिक सेक्टर रिक्वायर द फाइनेंस पीपल, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, ये सारी डोमेन्स की रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक सेक्टर में। गवर्नमेंट से ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं पब्लिक सेक्टर को। क्यों? रीजन दैट इज द सैलरीज। उसके बाद दूसरी जो आप लोगों को लगता है जॉब सिक्योरिटी, इट इज सेम एज द गवर्नमेंट जॉब, कि पब्लिक सेक्टर में जो जॉब सिक्योरिटी इक्वली है। और वर्क लाइफ बैलेंस जो गवर्नमेंट जॉब में लगता है सेम आपको पब्लिक सेक्टर में भी वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा आपको। उसके बाद जो इसमें अदर बेनिफिट्स होते हैं अदर देन सैलरी, दैट इज ऑल्सो मोर देन द गवर्नमेंट जॉब, दैट इज ऑल्सो मोर देन द गवर्नमेंट जॉब। अब पब्लिक सेक्टर के कुछ नाम बताता हूं मैं, जो आप लोगों ने डेली बेस पे आप लोग इसको सुनते हैं और आप उनके कांटेक्ट में भी आते हैं। जैसे आप लोग अपने 2 व्हीलर में 4 व्हीलर में पेट्रोल या डीजल भरवाते हो, कौन से पंप से भरवाते हो? कौन सा पंप होता है? IOCL, HPCL, ये पब्लिक सेक्टर है। ये पब्लिक सेक्टर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड मैंने आपको बताया, ISRO बताया, BARC, DRDO, ये सब पब्लिक सेक्टर है। ये सारे लिखे हुए हैं, ये कुछ लिखे हैं। ये 250 प्लस पब्लिक सेक्टर है इंडिया के अंदर। आपका पंजाब नेशनल बैंक क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? J&K बैंक क्या है? ये सब पब्लिक सेक्टर है, ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर है सारे। आप देखना जहां पे बोर्ड लगा होगा ना बैंक का, उसके अंदर लिखा होगा अब PSU अंडरटेकिंग, वहां पे लिखा होगा। और पब्लिक सेक्टर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। महारत्ना, जिसका सबसे ज्यादा सैलरी पैकेजेस देते हैं, जिसमें ये IOCL, HPCL, ONGC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये महारत्ना की कैटेगरीज में आते हैं। देन मिनी रत्ना, जिसका पे स्केल जो इसका जो ओवरऑल टर्नओवर है
कम है, इसका रेंजेस में ऐसे डिवाइड किया हुआ है टर्नओवर के हिसाब से। महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्नास। नवरत्नास जो नए बन रहे हैं, नए आ रहे हैं पब्लिक सेक्टर, राइट। तो सैलरीज उसके अकॉर्डिंगली है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम जाता है वो अराउंड 18 लाख तक जाता है, और वो महारत्ना पब्लिक सेक्टर दे रहे हैं। लाइक ओएनजीसी, ओएनजीसी की बात करते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसमें 15 दिन ऑन होता है, 15 दिन ऑफ होता है जॉब में। 15 दिन दबा के काम, 15 दिन ऑफ ओएनजीसी के अंदर, और सैलरी सबसे ज्यादा देता है। 17-18 लाख के इसका पैकेज होता है ओएनजीसी का। एंड इट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू अगेन टू द इंजीनियरिंग डोमेन। ऐसा नहीं कि पब्लिक सेक्टर में ओनली इंजीनियरिंग का इंटेक हो रहा है, हर डोमेन का इंटेक है उसके अंदर। एमबी पीपल ऑल्सो दे रिक्वायर टू मैनेज द थिंग्स, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, दे नीड दिस पीपल। CA, आप लोग बीकॉम एमकॉम के बाद CA कर सकते हैं, CA पीपल दे रिक्वायर। तो ऐसा नहीं है कि ये जो मेरी प्रेजेंटेशन ओनली लिमिटेड टू इंजीनियरिंग, इसमें आप लोग एंटर कर सकते हैं बीइंग एन नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पीपल। समझ में आगे बात समझ में। तो ये कुछ पब्लिक सेक्टर मैंने लिखे हैं। अब इन पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के दो तरीके हैं, 2 ways आर देयर। फर्स्ट वन इज थ्रू गेट एग्जामिनेशन, अदर वन इज विदाउट गेट एग्जाम। नेक्स्ट कर, अगर आप थ्रू गेट, जैसे आपने गेट का एग्जाम दे लिया, ध्यान से समझना स्ट्रक्चर क्या होता है। आपने गेट का एग्जाम दिया, आपके कुछ मार्क्स आएंगे, लेट अस सपोज आउट ऑफ 100 40 आए, 45 आए, 50 आए, तो उसके बेस पे आप अलग अलग पब्लिक सेक्टर में अप्लाई करते हैं। आप उसमें अप्लाई करोगे तो उसका अगला जो राउंड होता है दैट इज द इंटरव्यू। इंटरव्यू हर किसी में होगा ही होगा, 2-3 पब्लिक सेक्टर छोड़ के। कौन सा? कोल इंडिया लिमिटेड, CIL नहीं लेता इंटरव्यू, NTPC नहीं लेता इंटरव्यू। ये 2 पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जो इंटरव्यू नहीं लेते हैं। रीजन, ये 2 पब्लिक सेक्टर ऐसे पब्लिक सेक्टर हैं जहां पे हेल्थ रिलेटेड थोड़े इश्यूज ज्यादा होते हैं, इस कारण से ये प्रेफर्ड पब्लिक सेक्टर नहीं है किसी के ज्वाइन करने के। समझ में आ गई बात, राइट। तो अब यहाँ पे 2 तरीके एंटर करने के, एक है थ्रू गेट एग्जामिनेशन, एक है विदाउट गेट एग्जामिनेशन। अगर थ्रू गेट एग्जामिनेशन होगा तो इंटरव्यू होगा, लेकिन कुछ पब्लिक सेक्टर के अपने टेस्ट भी होते हैं, सॉरी इंटरव्यू से पहले ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, केस स्टडी, ये चीजें होती हैं। अभी 3-4 दिन पहले IOCL का शॉर्टलिस्टिंग आया है, जो किसी टाइम पे 65+ मार्क्स के ऊपर कॉल आता था बच्चों को इंटरव्यू के लिए इन गेट। इस बार जनरल कैटेगरी, मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच at 35 marks got the call, at 35 marks IOCL। only 35 marks पे कॉल आ गया। now you have to prepare for the next round। IOCL में ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप टास्क होता है, इंटरव्यू होता है, राइट। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में ये चारों होते हैं, GD, GT, केस स्टडी, इंटरव्यू, सब कुछ होता है। लेकिन कुछ पब्लिक सेक्टर होते हैं जिसमें ओनली इंटरव्यू होता है, लाइक ONGC ओनली इंटरव्यू है, HPCL उसमें ग्रुप टास्क है एंड इंटरव्यू है, राइट। दूसरा वे है विदाउट गेट, कि जो पब्लिक सेक्टर विदाउट गेट है ऑब्वियस है अपना एग्जाम लेंगे फिर, राइट। कौन से पब्लिक सेक्टर विदाउट गेट है उनके कुछ मैं नाम बता रहा हूं, जैसे HPCL ये अपना टेस्ट लेता है, अभी 18 तारीख को उसका एग्जाम हो गया था, 18 अगस्त को। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ISRO, BRC गेट के थ्रू भी होता है, विदाउट गेट भी होता है, BEL, BDL, MDL, कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। देयर आर सो मेनी पब्लिक सेक्टर, HRRL, अराउंड 30+ पब्लिक सेक्टर एवरी ईयर कंडक्ट देयर ओन एग्जाम। राष्ट्रीय फर्टिलाइजर लिमिटेड, RFL, RCFL, NFL, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये अपना एग्जाम लेते हैं। तो एवरी ईयर यू विल फाइंड more than 30+ public sector who are conducting their own examination। तो जो मैंने आपको बताई थी बात कि अगर गेट क्वालिफाई नहीं हुआ तो इट मींस यू हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्शन इन द अदर एग्जामिनेशन, क्योंकि आपने एक बार मेहनत की हुई है उससे रिलेटेड, राइट। नेक्स्ट नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द हायर स्टडीज। हायर स्टडीज में मैंने आपको बताया था 3 ऑप्शंस होती हैं आप लोगों के पास। फर्स्ट वन इज द MTech ऑप्शन, second one is the MS option, third one is the direct PhD option। MTech is a 2-year program, MS is a 3-year program, direct PhD is a 5-year program। After BTech you can go। How many you have here who are having the CGPA more than 7.5? 7.5 से प्लस CGPA जिसका, just raise your hand।
सोच सोच के क्यों कर रहे हो खड़ा हाथ में? ओके गुड। अब मैंने क्यों बोला, ध्यान से सुनना। इसका आप लोगों को लगता है शायद कि सर सीजीपीए का ज्यादा होने का अभी तक मेरे को कोई बेनिफिट हुआ ही नहीं, ना होगा शायद, लेकिन देयर आर प्रोग्राम्स जहां पे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, स्पेशली दिस एमएस प्रोग्राम एंड डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम। एमटेक में जो प्योरली सिलेक्शन है दैट इज गोइंग टू बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट एग्जामिनेशन। गेट में मार्क्स के बेस पे फाइनल सिलेक्शन एमटेक के अंदर है, लेकिन एमएस या डायरेक्ट पीएचडी में ऐसा नहीं है, उसमें सीजीपीए का रोल है। योर सीजीपीए इज हैविंग ए ह्यूज रोल। फर्स्ट बेनिफिट ऑफ गेट एग्जामिनेशन कि एक एग्जाम दो, मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जा रही हैं। सेकंड ब्यूटी ऑफ दिस गेट एग्जाम, आपके कितने भी मार्क्स आए, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, कितने भी नंबर आए, हर नंबर के ऊपर कुछ ना कुछ मिलता है गेट एग्जाम से। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस गेट एग्जाम कि हर मार्क्स पे कुछ ना कुछ मिल रहा है, हर मार्क्स पे आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। और ऑब्वियसली जितने मार्क्स आपके ज्यादा होंगे उतनी ऑप्शन आपको बेटर मिलेगा, उतना आपको ऑप्शन ज्यादा बेटर मिलेगा। आगे की बात समझ में ना? अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर 12,400 रुपया, ये 30,000, 80,000, 70,000 हमें क्यों देती है गवर्नमेंट? आपको क्या लगता है कि आपको गवर्नमेंट क्यों दे रही है आपके पढ़ने के? हाँ, वेरी गुड। किस चीज के मिल रहे हैं आपको ये पैसे? 12,400 रुपये, 38,000, 70,000, 80,000 किस चीज के मिल रहे हैं? मैंने कवर किया पॉइंट ये कि जब आप मास्टर्स करते हैं या पीएचडी करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, और वो जो रिसर्च होती है वो एक सोसाइटी की प्रॉब्लम होती है। अब ये सिस्टम कैसे वर्क करता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किया था चिप मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, मैंने पॉइंट बोला। अब मेरे को सपोज चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेरे को सपोज उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है कि एक दिन में अगर सपोज एक इंडस्ट्री 100 बना रही है और मेरे को 500 बनाने एक दिन में, तो कैसे किया जाए? अब आप बोलोगे सर मशीनें बढ़ा लो, बंदे बढ़ा लो, हो जाएंगे 500। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर आप लोगों ने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ रही है, मैकेनिकल ने, मैकेनिकल स्टूडेंट्स ने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ ली आपने? है इनको स्टूडेंट? हाँ मैकेनिकल, यस और नो? पढ़ा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इसी सेमेस्टर में या पिछले सेमेस्टर में था? पिछले सेमेस्टर में था, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी ऐसी, बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी ऐसी, टाइम स्टडी, वर्क स्टडी, प्लांट लेआउट, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं कि अगर कोई काम सीरीज में होना है, फॉर एग्जांपल इसका सपोज असेंबली होना है फॉर एग्जांपल, या कोई एसी का असेंबली होना है या पंखे का असेंबली होना है, तो पहले एक काम, फिर अगला काम, फिर अगला काम, ऐसे ऐसे स्टेप में काम हो रहा है। इतनी चीज समझते हो? इतना चीज समझते हो कि नहीं समझते हो? अब मेरे को इस प्रोसेस को अगर फास्ट करना है तो कैसे होगा? ये एक प्रॉब्लम है सोसाइटी की, ये एक प्रॉब्लम है इंडस्ट्री की, राइट? अब इसके लिए एक्सपर्ट चाहिए कि इसका सोल्यूशन कौन देगा? अब मेरे को बताओ, इसका एक्सपर्ट इंडस्ट्री में बैठा होगा या आईआईटी में बैठा होगा? सोच के बताओ, किसी भी डोमेन का जो इंटरेस्ट है, जो स्पेशलिस्ट है, वो कहां बैठा होगा? इंडस्ट्री में या आईआईटी में? साइबर सिक्योरिटी का जो एक्सपर्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक्सपर्ट है, वो इंडस्ट्री में होगा या आईआईटी में होगा? कहां होगा? आईआईटी के अंदर होगा। इंस्टीट्यूट्स में होते हैं एक्सपर्ट। इंडस्ट्री में तो वो एक चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट्स के अंदर तो एक प्रोफेसर के पास 50 प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, 50 प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, और वो गाइड कर रहा होता है स्टूडेंट्स को, और वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। इंडस्ट्री बोलती है ये प्रॉब्लम है, ये पकड़ 10 करोड़ रुपए, मेरे को इसका सोल्यूशन दो, आपके पास 2 साल का टाइम है। वो प्रोफेसर ढूंढती है जो उस डोमेन में एक्सपर्ट है, वो पैसा जाता है एमएचआरडी के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वहां पे सारा पैसा कलेक्ट होता है, और वहां पे जहां पे पैसा कलेक्ट हो रहा है वहां से फिर हर स्टूडेंट को जो है आपको स्टाइपेंड मिलता है। अब अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो? सिस्टम कैसे चल रहा है? प्रोफेसर ढूंढा उसने, उसको दिया कि ये रे भाई तेरे पास 2 साल का टाइम है। अब प्रोफेसर को चाहिए स्टूडेंट्स काम करने के लिए, क्या प्रोफेसर खुद उसका सोल्यूशन देगा? नहीं। प्रोफेसर क्योंकि उस डोमेन का एक्सपर्ट है, वो काम करवा सकता है, वो गाइड करेगा स्टूडेंट्स को,
और स्टूडेंट्स कौन से होंगे? जो उसके पास आएंगे मास्टर्स या पीएचडी के लिए, वो उसको गाइड करेगा। अब इसमें स्टूडेंट का भी इंटरेस्ट है कि मेरे को एमटेक का डिग्री चाहिए, मेरे को पीएचडी का डिग्री चाहिए। प्रोफेसर का भी इंटरेस्ट है कि मेरे को अपने रिज्यूमे में एक और प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा और मेरे को उसका एक शेयरिंग भी मिलेगा 10 करोड़ में से। अब जब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा, ना सोच के देखो किसका फायदा होगा। जब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा तो किसका फायदा होगा? स्टूडेंट का फायदा होगा? स्टूडेंट का होगा फायदा? होगा नहीं होगा? यस होगा, क्योंकि उसको डिग्री मिल जाएगी। प्रोफेसर का फायदा होगा? प्रोफेसर का होगा फायदा? यस होगा। उस इंस्टीट्यूट का फायदा होगा? बिल्कुल होगा। उस इंडस्ट्री का फायदा हो गया क्योंकि उसको सॉल्यूशन मिल गया। और अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम किसकी प्रॉब्लम थी? सोसाइटी की, कि भाई कारों का इतना वेटिंग पीरियड चल रहा था, मोटरसाइकिल का इतना वेटिंग पीरियड चल रहा था, चिप मैन्युफैक्चरिंग 100 से 500 हो गया है महीने का, तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी होने लग जाएगा, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होने लग जाएगा, आउटकम ज्यादा आने लग जाएगा। तो इट मींस कि इससे सोसाइटी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे मॉडल जिससे हर किसी को फायदा हो रहा है, एंड दैट मॉडल इज कॉल्ड द सस्टेनेबल मॉडल। सस्टेनेबल वर्ड होता है एक, आजकल इंटरनेशनल लेवल पे सस्टेनेबल गोल्स की बात हो रही है कि भाई कोई कंट्री कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नेचर को मत स्पॉइल करो, आने वाली जनरेशन के बारे में सोचो, स्पेशली एनवायरमेंट रिलेटेड। तो कुछ भी ऐसा नहीं करना है हमें जिसमें एक दो बंदे का फायदा है, सभी का फायदा नहीं हो रहा। तो सिस्टम ऐसा बनना चाहिए, और वही सिस्टम सस्टेन कर पाएगा जिसका मॉडल सस्टेनेबल है और जिसमें हर किसी का फायदा हो रहा है। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? अगर आप भी अपना कोई ऐसा सिस्टम बनाओगे ना कि जिसमें आप सोचो बस मेरा फायदा हो जाए, बाकी किसी का फायदा ना हो, वो फेल हो जाएगा सिस्टम। और यही चीज आजकल ऑनलाइन में हो रहा है, यही चीज आजकल ऑनलाइन में हो रही है कि आप लोग एडवर्टीजमेंट कर करके बेच तो रहे हो, चीजें कुछ अलग ही दिखा के बेच तो रहे हो, लेकिन अगर अल्टीमेटली उस एंड यूजर का पर्पस सॉल्व नहीं हुआ उस प्रोडक्ट से, वो चेन वहीं पे रुक जाएगी, वो चेन वहीं पे रुक जाएगी। तो मॉडल ऐसा होना चाहिए जो सस्टेनेबल हो, जिसमें हर किसी का फायदा हो। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? आ रही कि नहीं आ रही बात में? हाँ। नाउ नेक्स्ट, नाउ अबाउट द मैनेजमेंट कोर्सेज। ध्यान से सुनना, आप लोगों को अगर आईएम्स में एमबीए करना है, देन यू हैव टू राइट द कैट एग्जामिनेशन। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं, यू कैन ऑल्सो एंटर इनटू द आईएम्स थ्रू दिस गेट एग्जाम। आप गेट एग्जाम के थ्रू भी आईएम्स में एंटर कर सकते हैं, एंड दैट प्रोग्राम इज नोन एज द एफपीएम प्रोग्राम, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। यू कैन एंटर देयर। और यहां पे स्कॉलरशिप होती है आपको 25,000 से 35,000 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप होता है। आगे की बात समझे? राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अब्रॉड स्टडीज। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द अब्रॉड, जो कि फेवरेट टॉपिक है पंजाब के लिए। देखिए, अभी तक आप लोगों ने जो देखा है ना, यहां पे सिस्टम किस तरीके से चल रहा है, चाहे कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, चाहे कोई नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, चाहे कोई किसी ने +2 किया हुआ है, चाहे किसी ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, कुछ भी किया हो, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एजेंट के पास जाते हैं कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना जी, मेरे को कनाडा जाना जी, मेरे को यूएसए जाना है, भेज दोगे? बोलेगा कितने पैसे हैं, कितना पैसा लगाना चाहते हो? अब एक्चुअल में क्या है कि जो हम लोगों ने प्रोसीजर फॉलो किया है, दैट इज रॉन्ग टू गो अब्रॉड। हम लोग प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, हम लोग वहां पे एक सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ गोइंग जा रहे हैं, सिर्फ एक जाने के लिए जा रहे हैं कि मेरे को कोई 8 महीने का कोर्स मिल जाए, कोई 1 साल का कोर्स मिल जाए, कोई 2 साल का कोर्स मिल जाए। हम लोग उस तरीके से जा रहे हैं, और जिसका फीस बहुत ज्यादा चार्ज हो रही है। एजेंट खुद भी बहुत ज्यादा फीस चार्ज कर रहा है, यूनिवर्सिटी खुद अपनी इतनी बहुत ज्यादा फीस चार्ज कर रही है। सो दिस इज नॉट द वे टू गो अब्रॉड। मैक्सिमम आपको जो है 2 लाख, इससे ज्यादा नहीं खर्चा करना है अब्रॉड जाने के लिए। 2 लाख दैट इज मैक्सिमम, इससे ज्यादा खर्चा आता भी नहीं है। लेकिन जो प्रोसीजर है वो अगेन मेहनत वाला है, जो मैं भी आपको बताने वाला हूं। प्रोसीजर इज, आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद देखो, स्टडीज एक ऐसा तरीका है, पढ़ाई एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू करियर बनाना सबसे ज्यादा आसान है। मेरे को बता दो कोई ऐसी करियर कि
कि जिसमें सर पढ़ाई से भी ज्यादा आसान है, कि पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी, मेरा करियर बन जाएगा? कोई एक बता दो मेरे को। नहीं है। सबसे ज्यादा आसान जो है करियर बनाना वो स्टडीज के थ्रू है। अब हम लोग बात कर रहे हैं अब्रॉड से रिलेटेड। देखो अब्रॉड में जो मैंने पिछले पेज पे आपको देखा होगा कि मास्टर्स में तो जो आपको स्टाइपेंड मिल रहा है वो 12,500 मिल रहा है, लेकिन पीएचडी में जो आपको स्टाइपेंड मिल रहा है वो 38,000 से लेके 80,000 तक मिल रहा है। रीजन, क्योंकि पीएचडी में रिसर्च वर्क ज्यादा होता है, 4 से 5 साल का होता है, और ज्यादा लंबे टाइम के लिए आपको सस्टेन करना पड़ता है। दैट इज द रीजन वाई दे आर पेइंग मोर स्टाइपेंड इन द पीएचडी प्रोग्राम। नाउ दिस सेम थिंग इज एप्लीकेबल एट द abroad also. This PhD programs worldwide are fully funded program. PhDs worldwide are fully funded program, जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है। इंडिया में कितना मिल रहा है? 38,000 मिनिमम, 80,000 मैक्सिमम। अब्रॉड में दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 2200 यूएस डॉलर, वेरीज अप टू 4500 यूएस डॉलर पर मंथ। मैं एक महीने की बात कर रहा हूं स्टाइपेंड, जिसमें तुम्हारा जो खर्चा है वो 1200 से 1500 डॉलर से ज्यादा नहीं है एक महीने का। पर मंथ मिनिमम 700 डॉलर यू आर सेविंग, और जिसमें आपको 5 दिन काम करना है, सैटरडे संडे ऑफ है, कोई लेबर वर्क नहीं करना। जो आप लोग करते हो ना 8 महीने के कोर्स के थ्रू जाके वहां पे लेबर वर्क कर रहे हो, कोई नीड नहीं है, कोई नीड नहीं है उसकी। सो अब मैं बात कर रहा हूं पीएचडी प्रोग्राम्स का। अब पीएचडी में भी एंटर करने के जैसे इंडिया में 2 तरीके हैं कि एक तो मास्टर्स के बाद तुम पीएचडी कर सकते हो, एक बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो। सिमिलरली अब्रॉड में भी एप्लीकेबल है कि डू मास्टर्स फ्रॉम इंडिया एंड गो फॉर द पीएचडी अब्रॉड। और ये जो मैं चीज बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि हवा में है और इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है। वी हैव सेंट thousands of students abroad for the PhD after masters and direct PhD also after the BTech. Other way to go abroad, first do PhD after masters, do masters from India and go for the PhD abroad, and the other way out is go for the direct PhD abroad. अब रिक्वायरमेंट क्या होती है पीएचडी के लिए, चाहे इंडिया चाहे अब्रॉड है, कोई भी कंट्री, रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहली आपका बीटेक में सीजीपी अच्छा होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में सीजीपी अच्छा होना चाहिए। मोर विल बी द बेटर, स्पेशली फॉर डायरेक्ट पीएचडी मिनिमम 8+ इज रिक्वायर्ड। तो अगर आप लोगों में से किसी का 8+ सीजीपी है, दे कैन अप्लाई फॉर डायरेक्ट पीएचडी। नाउ द सेकंड कंडीशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो सीजीपी हो गया, सेकंड वन इज अ वेरी गुड बीटेक प्रोजेक्ट। आपका बीटेक का प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, और बीटेक का प्रोजेक्ट अच्छा होने से ये मतलब नहीं है कि मैंने कार बना दिया, मैंने ट्रांसफार्मर बना दिया, मैंने ये कर दिया। ये प्रोजेक्ट्स नहीं है। प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जिसमें आपका रिसर्च एक्यूमेंट दिखना चाहिए, आपका रिसर्च वर्क उसके अंदर दिखना चाहिए थोड़ा सा। अब रिसर्च वर्क होता क्या है कि जो भी आप चीज बनाओगे ना, उससे कुछ डेटा कलेक्ट करोगे, उससे कुछ डेटा कलेक्ट करो और उसके एनालिसिस के बेस पे कुछ आउटकम दिखाओ कि अगर ये वैल्यू होती है तो ये आउटकम आती है, ये वैल्यू होती है तो ये आउटकम आती है। दैट इज रिसर्च ओनली। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी क्या है? आज से अगर आप 7-8 साल 8-10 साल पहले देखा होगा, अगर आपने सुना हो, तो उस टाइम पे हम डेटा की बात करते थे कि डेटा कलेक्ट करना है, डेटा एनालिसिस करना है, ये करना है, डेटा की बात होती थी। आजकल हम बात किस चीज की कर रहे हैं? आजकल हम बात कर रहे हैं एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। चैट जीपीटी क्या है? वो एआई टूल है, लेकिन एआई टूल बनते हैं डेटा से। और डेटा साइंस और एआई ये कंप्यूटर साइंस की डोमेन्स नहीं है, ये मैथमेटिक्स का डोमेन है और ये इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन है। ऑल ऑफ यू कैन डू योर मास्टर्स और पीएचडी इन एआई एंड डेटा साइंस। यू कैन डू दैट। कोई भी ब्रांच से हो आप लोग, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, यू कैन डू दैट। और ये मैथमेटिक्स की डोमेन है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। अब आप बोलोगे सर बीकॉम बीबीए क्या हम लोग कर सकते हैं? यस यू कैन राइट, यस यू कैन डू, लेकिन आपको गेट का एग्जाम देना पड़ेगा मैथमेटिक्स में। अगर आप गेट एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स में देते हो, गेट इन मैथमेटिक्स होता है, देन यू कैन अप्लाई फॉर डेटा साइंस कोर्सेज इन आईआईटीज और अब्रॉड, यू कैन राइट। तो अब्रॉड के लिए मैं बात कर रहे थे हम लोग
कि अगर आप लोग अब्रॉड जाना चाहते हो द इजीएस्ट वे इज फॉर द पीएचडी, और इसमें कोई वीजा की प्रॉब्लम नहीं, कोई किसी तरीके का कोई एजेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि देखो पर्पस क्या है तुम्हारा, बाहर जाने का पर्पस क्या है, इसके थ्रू तुम लोग एक प्रोफेसर के पास जा रहे हो जिसके पास प्रोजेक्ट है और वो तुम्हें फंडिंग दे रहा है। अब मेरे को बताओ कौन सी कंट्री इसको ऑब्जेक्ट करेगी? सोच के देखो कि एक स्टूडेंट ने वीजा के लिए अप्लाई किया, उसने वहां पे दिखाया कि मैं वर्ल्ड की टॉप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूं, ये यूनिवर्सिटी में जा रहा हूं, और मेरे को ये प्रोफेसर के अंडर मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, और इतना मेरे को वो स्टाइपेंड देगा रहने के लिए वहां पे, मेरा अपना सस्टेन करने के लिए। कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि ये पर्पसफुल है, ये पर्पस से जा रहे हो आप उस तरीके से नहीं जा रहे हो। जब आप 8 महीने के लिए जा रहे हो, किसी और को पता है, उसको सामने वाले को, कि तुम किसी और पर्पस से जा रहे हो। तो ये इजीएस्ट वे है टू गो फॉर द अब्रॉड, इससे आसान नहीं है। अब आप बोलोगे सर मास्टर्स के लिए अब्रॉड नहीं जा सकते हो? यस यू कैन गो फॉर दैट। इफ यू आर टारगेटिंग मास्टर्स अब्रॉड, गो फॉर द यूरोप टारगेट करना, यूएसए इस तरफ टारगेट मत करना। क्योंकि देखो पहला चीज है, मास्टर्स में स्कॉलरशिप्स कम होती हैं, क्योंकि पीरियड कम होता है, 2 साल का प्रोग्राम होता है, इसमें स्टाइपेंड कम होते हैं। लेकिन यूरोप के अंदर, स्पेशली जर्मनी वगैरह में, नॉर्वे वगैरह में, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर ट्यूशन फीस वेव ऑफ होती है। आपका 10-12 लाख रुपए खर्चा आएगा ओनली फॉर मास्टर्स। अगर ये को होता है ड्रीम कि सर मास्टर्स के लिए ही जाना है मेरे को, देन यू कैन गो फॉर दैट। पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन यूरोप हैव नो ट्यूशन फीस। 10-12 लाख जो आपका खर्चा है वो आपका रहने खाने पीने का है, फीस का कोई खर्चा नहीं है उसके लिए, कोई खर्चा नहीं है उसके लिए। And we are guiding thousands of students we are guiding to go abroad. क्यों? रीजन स्टाइपेंड अच्छे, क्वालिटी लाइफ है, आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है वहां पे जाके, कोई लेबर वर्क नहीं करना पड़ रहा, बहुत सारे रीजंस हैं। आगे की बात समझ में पता लग गया अब्रॉड जाने का रास्ता? दिस इज द इजीएस्ट वे, बिलीव मी, दिस इज द इजीएस्ट वे। इससे आसान नहीं है कोई जाने का रास्ता। खर्चा तुम्हारा 1.5-2 लाख रुपए, और इसमें टिकट इंक्लूड की है मैंने, ट्रेन उसकी आपकी प्लेन की 2 लाख। ऐसा नहीं कि प्लेन की टिकट अलग से है, इसमें इंक्लूडेड है। समझ में आ गई पॉइंट? नेक्स्ट, वो किस चीज की वेट कर रहे हैं बाहर? हाँ, अंदर आने जाते हैं? हाँ तो बुला लो। नेक्स्ट नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाई हायर स्टडीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। आ जाओ, कम फास्ट। आगे हो जाओ, आगे हो जाओ ना, उधर बैठ जाएंगे इधर। नाउ पंजाब में पढ़ाई की बात कर लो, सारे ऐसे होते हैं, पढ़ाई के नाम पे बड़े चलते हैं पंजाब में। ओके, सो लेट डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज व्हाई हायर स्टडीज। व्हाई हायर स्टडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको बताता हूं कि लाइफ में ना 2 गलती मत करना, और आप उस स्टेज पे हो जो ये गलती करोगे। पहला, जॉब करने का जल्दी मत करना, जॉब करने का जल्दी मत करना। दूसरा, अपना इमीडिएट कंपैरिजन मत करना किसी के साथ, कि जैसे तुम बीटेक पास आउट होंगे, कौन क्या कर रहा है और मेरे को क्या, और वो कौन क्या कर रहा है, उसके बेस पे अगर आप अपना डिसीजन ले रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी वेरी रॉन्ग। ध्यान से सुनना, मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि पहला चीज कि लाइफ में जॉब करने का जल्दी मत करना। दूसरा, अपना इमीडिएट कंपैरिजन मत करना किसी के साथ, कि वो क्या कर रहा है और मेरे को क्या करना है, ये मत करना कंपैरिजन। उसकी तो नौकरी लगी 4 लाख की, उसके तो फादर ने उसको जॉब लगवा दिया 20,000 का, वो तो बाहर चला जा रहा है, उसके पेरेंट्स के पास तो पैसे हैं, उन्होंने तो 1 किला जमीन बेच दी, 40 लाख से उन्होंने भेज दिया बाहर। ये कंपैरिजन मत करना, अपने पेरेंट्स का हार्ड अर्न्ड मनी वेस्ट मत करना, ये लाइफ में ध्यान रखना। लोन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं किसी भी चीज की। नाउ व्हाई हायर स्टडीज?
हायर स्टडीज करने की रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको इससे पहले बताई है, दैट इज अ स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर डोमेन। अभी आप लोग स्पेशलाइज्ड नहीं हो किसी डोमेन के, यू हैव टू बी स्पेशलाइज्ड। आपको इस झुंड से बाहर होना है, आपको इस झुंड से बाहर होना है। आप इस झुंड से बाहर तभी हो सकते हो अगर आप किसी चीज के स्पेशलाइज्ड हो। These are 50 students who have done BTech in mechanical. These are 2 students who are having the specialization in thermal, geotech, transportation, cyber security, artificial intelligence, data science. You are the expert. तो आप ऑटोमेटिकली इस झुंड से बाहर हो जाओगे। बात आ रही कि नहीं आ रही है समझ में? तो सबसे पहला रीजन हायर स्टडीज का, दैट इज द योर स्पेशलाइजेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द ब्रांडिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्रांडिंग। अब इसका ब्रांडिंग का क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको बताया कि 2 लोग अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एक स्टूडेंट ने अपने रिज्यूमे पे लिखा हुआ गेट क्वालिफाइड, एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ है नहीं, मतलब क्वालिफाइड नहीं, मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आपको नहीं लगता उसको बेनिफिट मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ है ना? यस मिलेगा। नाउ लेट अस सपोज 2 स्टूडेंट गए इंटरव्यू के लिए, या कोई एक कंपनी इंटरव्यू के लिए आ रही है, सपोज आपके कॉलेज में आई और यहां पे अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी है। एक आप है इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, एक सपोज पैक का जा रहा है, एक एनआईटी का जा रहा है, एक आईआईटी का जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इसको बेनिफिट मिलेगा? मिलेगा ना? मिलेगा आईटी का बेनिफिट। दैट इज ब्रांडिंग। दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। आपको अपने रिज्यूमे पे कुछ ब्रांड रिफ्लेक्ट करने हैं। नाउ वहीं पे आईटी है, अब वहां पे कोई एक ऐसा स्टूडेंट भी है जो अब्रॉड से पढ़ के आया है। नाउ बताओ, अब बताओ, ऑटोमेटिकली बेनिफिट उस तरफ चला जाएगा जिसको इंटरनेशनल एक्सपोजर है। ऑटोमेटिकली नो डाउट कि उसको परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, बाकी चीजों के लिए परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा, देन ओनली ही विल गेट द एडमिशन दिस जॉब, अदरवाइज नॉट। लेकिन अदरवाइज मैं क्यों एग्जांपल ले रहा हूं? मैं एग्जांपल ये इसलिए लिया सो दैट कि तुम्हें पता लगे कि ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है। सेम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और बीटेक ग्रेजुएट उन्होंने बुलाए हुए हैं। एक स्टूडेंट गया वहां पे आपके कॉलेज से, एक स्टूडेंट गया पैक से, एक गया एनआईटीसी के, एक गया आईआईटी से, एक स्टूडेंट ऐसा जो अब्रॉड से पढ़ के आया है। दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। मास्टर्स करने का, हायर स्टडीज करने का, स्पेशलाइजेशन करने का बेनिफिट आपको तभी होगा अगर आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आपको लगे कि सर ने बोल दिया कि स्पेशलाइजेशन कर लो, मास्टर्स कर लो, पैक से कर लेते हैं, थापर से कर लेते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, कोई फायदा नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अभी बोल रहा एमबीए कहीं से भी कर लेते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। टारगेट इंडियाज टॉप इंस्टीट्यूट्स। अब वहां पे पहुंचने में चाहे तुम्हें 1 साल लगे, चाहे तुम्हें 2 साल लगे, चाहे तुम्हें 3 साल लगे। थिंक अबाउट, फिर वही सिचुएशन जो मैंने शुरू में बोली कि आपने टारगेट कर लिया मेरे को आईएम में एमबीए के लिए जाना है, मेरे को आईटी में मास्टर्स के लिए जाना है, मेरे को अब्रॉड टारगेट करना है पीएचडी के लिए। जिस दिन वो मिल गया ना, उसके पहले कोई देखेगा और उसके बाद की लाइफ तुम एंजॉय करोगे। कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हें उसको मिलने के लिए कितना एफर्ट किया, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको पता है कि मिल गया, अब इसकी लाइफ सेटल्ड है, अब इसका ओके है। आगे की बात समझ में? सो दिस इज हायर स्टडीज। ये पावर है हायर स्टडीज का। और तुम नॉलेज जो एक्वायर करते हो, जो तुम एक्सपोजर तुम्हें मिलता है, वो तुम्हें पूरी लाइफ में डिविडेंड देगा। तुम्हें अपने आप को भी, तुम्हारी जनरेशन, तुम्हारी आने वाली जनरेशन, उसको बेनिफिट मिलेगा। राइट, नेक्स्ट अदर एग्जाम देखो, इसके अलावा कौन से होते हैं जो आप लोग लिख सकते हैं गेट के अलावा? जैसे स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द टेक्निकल या नॉन टेक्निकल की बात करें, नॉन इंजीनियरिंग की भी, तो उसमें आपके पास एक एसएससी होता है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है बॉडी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है जो असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सीजीएल, जिसको ऑल ग्रेजुएट्स लिखते हैं सारे एग्जाम, तो वो एग्जाम करवाती है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भी, रेलवे के अंदर भी आपका टेक्निकल डोमेन के लिए और नॉन टेक्निकल डोमेन के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए, बीकॉम के लिए, इनके लिए सारी वैकेंसीज वहां पे आती है। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये ऐसी 2 बॉडीज हैं जो रेगुलर एग्जाम कंडक्ट करवाती है। राइट, इसको देखते रहा करो,
इनकी साइट्स विजिट करते रहा करो, वहां पे बहुत नोटिफिकेशंस आती हैं। इसके अलावा आपके स्टेट के जेईई, स्पेशली द इलेक्ट्रिकल पीपल एंड द सिविल पीपल, आप लोगों का अपना स्टेट जेईई के लिए आप लोगों की बहुत वैकेंसीज आती रहती हैं, तो आप लोग उसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाएगी अगर आपने एक स्टैंडर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की है, एंड दैट स्टैंडर्ड एग्जाम इज अ गेट एग्जामिनेशन। उसके लिए आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम एक साल के अंदर निकलते रहते हैं जो एवरी ईयर नहीं आते लेकिन बीच बीच में आते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पिछले साल एक एग्जाम आया था पेटेंट ऑफ एग्जामिनर का। आप लोग कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, उसमें कुछ पेटेंट फाइल करते हैं। पेटेंट फाइल करने के लिए उसकी एप्लीकेशन जिसके पास जाती है दैट इज कॉल्ड द पेटेंट ऑफ एग्जामिनर, सॉरी एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स। तो उसको वो चेक करता है फर्स्ट राउंड के लिए। तो उसके लिए एग्जाम आया था, 550 वैकेंसीज थी उसके अंदर, ये आया था। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, जैसे दिस डिप्टी फील्ड ऑफिसर के लिए कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर जो पोस्ट निकली थी। ऐसे एग्जाम बहुत सारे आते हैं थ्रू आउट ईयर, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे आते रहते हैं, इंजीनियरिंग डोमेन के लिए भी, नॉन इंजीनियरिंग डोमेन के लिए भी। बट डेफिनेटली यस कि अगर आप उन एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हो, ऑब्वियसली उसमें एफर्ट है, ऑब्वियसली मेहनत है, उसमें आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसमें रिटन एग्जाम निकालने पड़ेंगे। इंटरव्यू कईयों में होता है, कईयों में नहीं होता। जहां पे भी क्लास 1 ऑफिसर का जॉब होगा वहां पे इंटरव्यू आपका होगा ही होगा। बात आ गई जी समझ, राइट। नाउ वी आर वाइंडिंग इट अप इन 2 मिनट्स। नेक्स्ट 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 आप पीछे करना। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत सिंपल होती है, चाहे आप कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम टारगेट कर रहे हो, चाहे आप नॉन इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो। बस आपको करना क्या है, पहले तो अंडरस्टैंड करना है उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। पहले आपको अंडरस्टैंड करना है उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, और वो कैसे पता चलेगा, आपको उसके प्रीवियस ईयर पेपर निकालने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो मेरे को गेट लिखना है सर, तो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ। सर मेरे को एसएससी जेई लिखना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखो उठाओ। एसएससी सीजीएल, बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम, आरआरबी जेई के एग्जाम, तो कोई भी एग्जाम जब आप उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो उसकी पहले रिक्वायरमेंट को जानना जरूरी है। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो और उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी बनाओ। और कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो आप नहीं पढ़ोगे किसी भी एग्जाम के लिए, अगर कहीं पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी पर्टिकुलर डोमेन का है। अगर कोई ऐसा एग्जाम जिसमें बीकॉम एलिजिबिलिटी लिखा है या बीबी एलिजिबिलिटी लिखा है, तो इट मींस कि जो उसका सिलेबस होगा वो आपकी डोमेन से रिलेटेड होगा। अगर कहीं पे बीटेक सिविल एलिजिबिलिटी लिखा है तो ऑब्वियसली उसमें आपका बीटेक के सिविल का ही सिलेबस होगा। तो ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ डिफरेंट पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंट पढ़ने का रिक्वायरमेंट आपको तब पड़ेगा अगर आप किसी ऐसे एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे जो जेनरिक हैं, जैसे जहां पे सारे ग्रेजुएट एलिजिबल हैं, उसमें बीकॉम वाला भी अप्लाई कर रहा है, बीबीए वाला भी अप्लाई कर रहा है, बीटेक वाला भी अप्लाई कर रहा है, सारे ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं। तो वहां पे जो एग्जाम का सिलेबस है वो डिफरेंट हो सकता है, वहां पे वो डिफरेंट हो सकता है वहां पे, क्योंकि वो एक जेनरिक एग्जाम है, एक कॉमन एग्जाम है जिसमें सारे ग्रेजुएट्स एलिजिबल है वहां पे, राइट। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रखनी है कि आपको पहले उस एग्जाम का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके प्रीवियस ईयर पेपर देखो, ढंग से देखो, सो दैट कि तुम्हें आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, कितना टाइम आता है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कहां से ज्यादा आता है, कहां से कम आता है। तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना है, राइट। नेक्स्ट, इस लिंक को स्कैन करना जल्दी से। ये इसका फोटो क्लिक करके आप अपने ग्रुप में सर्कुलेट कर दो, जल्दी जल्दी जल्दी। ये जो क्यूआर कोड है ये हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का क्यूआर कोड है। इसको जब आप स्कैन करेंगे तो आप लोग रीच कर जाएंगे हमारे जो यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म योरपीडिया एजुकेशन का। तो इसमें आपको जितने भी करियर रिलेटेड एग्जाम्स का आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि थ्रू आउट ईयर बहुत एग्जाम्स आते रहते हैं, उसका इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज जो एग्जाम टू एग्जाम वेरी करती हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग जो है हमारे टच में रहेंगे तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, राइट। नाउ इन द एंड एनी क्वेरी इफ यू हैव, वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़, हम लोग चंडीगढ़ बेस्ड है। और इन स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, आपके स्टेट जेईई से रिलेटेड है, गेट वगैरह से रिलेटेड, तो उसका हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। वी आर बेस्ड इन 34। नाउ इन द एंड इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी, कोई भी आपको दिमाग में कोई डाउट आ रहा है आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। हाँ, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, देखो टारगेट करो कि अगर आप ऑफलाइन कर सकते हैं, टारगेट करो कि अगर आप ऑफलाइन कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द बेटर ऑप्शन।
रीजन उसके पीछे ये है कि जैसे अब यहाँ पे माहौल मिल गया ना आपको फील आएगा कि सारे करियर से रिलेटेड डिस्कशन हो रहा है। ये चीज वहां पे भी होती है कि जब क्लासरूम के अंदर आप जाके प्रिपरेशन करते हो तो आपको अंदर डिसिप्लिन आता है, आपको एक माहौल मिलता है, एक 1-to-1 इंटरेक्शन हो जाता है मेंटर के साथ, तो प्रेफरेंस ऑफलाइन को देनी है। ऑनलाइन कैन नेवर बी द रिप्लेसमेंट ऑफ ऑफलाइन। वो एक ऑप्शन है कि सर कोई भी ऑल्टरनेट बन ही नहीं रहा मेरे ऑफलाइन आने का, देन यू शुड गो फॉर द ऑनलाइन। ये है, अदरवाइज ऑप्शंस दोनों अवेलेबल है हमारे पास। Yes, any questions you can ask? आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी क्वेरी जो मैंने बताई चीजें। यस, अब्रॉड इंडिया, इंडिया अब्रॉड। देखो आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस। देखो अब्रॉड के लिए तो इसको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपका सीजीपीए मैटर करता है और आपका बीटेक का प्रोजेक्ट मैटर करता है। फिर हमें क्या करना पड़ता है कि जिस डोमेन में आप अपना काम करना चाहते हो, जिस डोमेन में आप रिसर्च करना चाहते हो, उसके रिलेटेड हमें कुछ यूनिवर्सिटीज और अपने प्रोफेसर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, वो सर्च करने होते हैं पूरे वर्ल्ड में। आप टारगेट करोगे सर मेरे को यूरोप साइड जाना है या यूएसए जाना है या किस कंट्री की तरफ जाना है, तो उसको करना है। यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट करनी है, प्रोफेसर शॉर्टलिस्ट करने हैं, फिर उनको हमने मेल करना स्टार्ट करना है। आप 100 प्रोफेसर्स को मेल करेंगे तो 20 का रिप्लाई आएगा, लेकिन वो रिप्लाई तभी आएगा अगर उसकी रिक्वायरमेंट के साथ मैचिंग हो रहा है, जिसके लिए आपको उसको प्रोफेसर की प्रोफाइल पढ़नी है, देखना उसके पास क्या प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट, और देखना मेरा इंटरेस्ट और मेरा प्रोजेक्ट वर्क क्या इसके साथ रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि वो आपको तभी यस बोलेगा कि अगर आपने उस पर्टिकुलर डोमेन में काम किया हुआ है। देखो मैनिपुलेशन चलती है, थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा जो शायद ना भी किया हो उसको मैचिंग करवाने के लिए, लेकिन उसके बाद वो इंटरव्यू लेता है। तो इंटरव्यू में करने से पहले आपको चीजों को अपने आप को प्रिपेयर करना है। सो दैट इज फॉर द अब्रॉड। उसके लिए योरपीडिया ग्लोबल टीम इज देयर जो आपको गाइड कर देगा। नाउ व्हाट अबाउट द इंडिया? इफ यू वांट टू गो फॉर द इंडिया डायरेक्ट पीएचडी थ्रू द गेट एग्जामिनेशन यू कैन डू। गेट एग्जामिनेशन के अंदर आपका जो मार्क्स है, अगर आपका सीजीपीए 7.5 प्लस है और अगर आपका मार्क्स 40-45 प्लस आ जाता है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू गेट अ कॉल फॉर द डायरेक्ट पीएचडी फ्रॉम द आईआईटीज। ये है इस तरीके से। गॉट इट? यस, एनीवन, एनी अदर क्वेरी? Yes, please. Any other questions? अब्रॉड से जो भी इंटरेस्टेड है ना, तो आपने जो भी अटेंडेंस दिया इसका पर्पस है, ये जो आप लोगों ने भी अटेंडेंस दिया मैं उसका पर्पस बताता हूँ क्या है। आप लोगों को सभी को ना एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसमें पंजाब में जहां जहां पे हम लोग सेमिनार्स कर रहे हैं वो सारे उस व्हाट्सएप ग्रुप में है। तो जितना भी इंफॉर्मेशन टाइम पे आता रहेगा हम लोग वहां पे फ्लोट करते रहते हैं। और ग्लोबल से रिलेटेड में जो भी आप लोगों में से इंटरेस्टेड होगा जिसने वहां पे मार्क किया है, तो मैं एक आपका इंटरेक्शन करवा दूंगा, एक फ्री इंटरेक्शन। वो जो ग्लोबल की हमारी टीम है जो अब्रॉड में बैठी है इस टाइम पे, वो आपको एक गाइड कर देगी कि प्रोसीजर क्या है। देन यू कैन विल बी मोर दिस, आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि कैसे होता है सारी चीजें। अदरवाइज अगर आप योरपीडिया ग्लोबल हमारा यूट्यूब चैनल देखोगे वहां पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एंड वी आर द फर्स्ट एजेंसी इन इंडिया, वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया प्राउडली सेइंग जो डायरेक्ट पीएचडी अब्रॉड के लिए गाइड कर रहा है। नोबडी इज देयर इन इंडिया। एनी अदर क्वेरी? गुड क्वेश्चंस आर कमिंग। एनी अदर क्वेरी? पूछो, कुछ भी आ रहा है दिमाग में। एक लास्ट क्वेश्चन कौन पूछेगा? मैंने स्टार्टिंग में 2 वर्ड्स बोले थे, एक बोला था जॉब, एक बोला था करियर। किसी ने पूछा नहीं सर इसका डिफरेंस क्या होता है, क्या होता है, कोई बता सकते हैं मेरे को? जॉब और करियर में क्या डिफरेंस होता है? जॉब एंड करियर, मैंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट ही यहीं से किया था। क्या होता है, कोई बता सकते हैं? हेजिटेट मत करो, जो भी दिमाग में बता दो। चलो मैं बताता हूं। जॉब एक ऐसा वर्ड है या जॉब एक ऐसी चीज है कि जिसमें आपको कोई एक्टिविटी दिया जाएगा, आपको कोई काम दिया जाएगा, वो आपको काम करना है, जिसके लिए आपको हफ्ते में 9 से 5 ड्यूटी जाना है। लेट अस सपोज 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, और आप उस टाइम में आप अपना काम देरी कर रहे हो जो आपको दिया गया, और उसके अगेंस्ट आपको ये सैलरी मिलेगा। दैट इज कॉल्ड द जॉब। आप ना 9 बजे से पहले अवेलेबल हो उस काम के लिए, ना 5 बजे के बाद अवेलेबल उस काम के लिए। जिस दिन छुट्टी है उस दिन तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो काम के लिए। दैट इज कॉल्ड द जॉब। कि मेरे को 5 दिन जॉब है, 8 घंटे, 8.40 घंटे के एक हफ्ते के, या 4, अगर 4 हफ्ते लगाए तो 160 घंटे मेरे को एक महीने में काम करना है, जिसके अगेंस्ट मेरे को सपोज 30,000 सैलरी मिलेगा। दैट इज कॉल्ड द जॉब। करियर क्या होता है? करियर वो चीज है जो आप काम कर रहे हो
उसके लिए ना टाइम मैटर करता है ना पैसा मैटर करता है, आप उस काम को एंजॉय कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द करियर, उसको करियर बोलते हैं। जिसके लिए कोई मैटर नहीं कर रहा मेरे को इसके लिए कितना पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे को कब ये काम करना है नहीं करना, रात को भी अगर 12 बजे मेरे को कोई कॉल कर दे आई एम अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड करियर। और आप अपने उस काम को एंजॉय कर रहे हो, आप उसको एक बर्डन नहीं लेके चल रहे हो, ओ यार 5 बज गए, अब इस 5 बजे के बाद किसका कॉल आ गया ऑफिस से। ये सिचुएशंस होती है और ये ट्रबल इंडिया के अंदर है, क्योंकि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ना, जॉब लगा लो, वो जॉब कर रहे हैं, हम लोग बाय इंटरेस्ट या बाय चॉइस अपनी उस डोमेन में काम नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ा ट्रबल ये आ रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमें इंटरेस्ट किस डोमेन में आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को बता दो किस डोमेन में आपका इंटरेस्ट है, मेरे को लगता है कि एक से ज्यादा कोई आंसर कर पाएगा कि आप करना क्या चाहते हो, अल्टीमेटली किस डोमेन में तुम्हारा इंटरेस्ट है। अब आप पूछो कि सर ये पता कैसे लगेगा, फिर ये बाय द टाइम ही पता लगेगा और एक्सप्लोर कर करके पता लगेगा डिफरेंट चीजें। दैट इज द रीजन व्हाई मैंने आपको बोला कि जॉब करने का जल्दी मत करना, क्योंकि अभी करोगे वो जॉब ही होगा, ठीक है, पैसा आएगा, सोसाइटी भी खुश होएगा, पेरेंट्स खुश होएगा, लेकिन इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। 21 ईयर्स इज नॉट द जॉब टू द जॉब। कम से कम 25-26 साल तो यार एक्सप्लोर करो, भगवान ने एक जिंदगी दी है उसी को सोच के एक्सप्लोर करो जितना ज्यादा तुम कर सकते हो। आईटी सिस्टम में जाओ, अब्रॉड जाओ, हर किसी को जाना चाहिए अब्रॉड, लेकिन वापस आके चाहे यहीं पे सर्व करो, कोई मैटर नहीं करता है, और तुम्हें उसका वैल्यू मिलेगा जब आप वापस आएंगे। तो थोड़ा सोचने का नजरिया चेंज करो। मेरा पर्पस बस इन प्रेजेंटेशंस को करने का पता है क्या है, हर कॉलेज में मैं ट्राई कर रहा हूं कि जितने ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रेजेंटेशंस कर लें, कि सोचने का नजरिया चेंज करना, स्पेशली टू द पीपल ऑफ पंजाब, क्योंकि बहुत ज्यादा कैपेबल है, मेहनती है, सब कुछ है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है और पता भी नहीं है करना क्या है, कैसे करना, वो प्रोसीजर्स नहीं पता है। 2-4 आप लोगों में से करना स्टार्ट करेंगे, आप आने वाली अपने जूनियर्स के लिए रोल मॉडल बनेंगे, बेंचमार्क सेट करेंगे। बस मेरा यही पर्पस है कि थोड़ा सोचने का नजरिया चेंज करना है बस, और हमें पता होना चाहिए ये सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है, मेरे को अपना करियर बनाना कैसे है, सिर्फ मेरा यही पर्पस है इसके लिए। राइट, चलो ठीक है यार, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत पेशेंस के साथ सुना और बहुत मजा आया आप लोगों से इंटरेक्शन करके। चलो ऑल द बेस्ट यार, थैंक यू।